Ravi Chaucharia. By qualifications, he is ACA, CS, CMA, BCom, MBA, PGDFM, CPISM, and the list goes on. Further, he's a CA mentor, author, as well as founder of CA Stars. He has a credit of giving first ever All India first rank to the city in CA exam. He has been honored in India by Gujarat Chief Minister. He holds one unique record in Surat, and that is he himself is All India rank holder in Chartered Accountancy, also in CS, also in Cost and Management Accountancy. He has been the All India rank holder in all the three. So this is one unique record about CA Ravi sir. He is author of various books. He runs a special program, CA Stars, as well as he has been awarded various awards. So, and lot more to discuss about Ravi sir. Proceeding ahead with the introduction of CA Ashish Simaria. Talking about CA Ashish Simaria, he is FCA, MBA in Finance, BBA. To talk about further growth of our sir, he has been topper in Gujarat state, both in SSC and HSC. He has been All India rank in first level. He is director as well as permanent faculty of GAPS Institute. He has the credit for, rather I would say, the credit for popularizing and simplifying CA course in Surat and amplifying Surat Center's CA result goes to him. He made city gleam at national level for CA results repeatedly. So welcome CA Ravi sir and CA Ashish sir for this live session, Skill and Will. We are grateful to have you here. Welcome sir. Before we proceed ahead with the conversations about skill and will to these bright speakers with us, I would like to request CA Balkishan ji to please address our speakers. So I would like to say that this live session is being presented by Impulse and FFIP, Forum for Indian Professionals. So CA Balkishan ji, representing Forum for Indian Professionals, please come forward to address our speakers. Thank you very much, CA Harsha, and we are also very thankful to Ravi sir and Ashish Simaria sir, who are always ready to support the CA students and our members as well. And the topic is very interesting, skill and will. और अगर मैं बताऊं तो so skill is the combination of an individual's aptitude, natural talent, training and experience, whereas the will is the desire to achieve, the incentive to complete the task effectively. So according to me, both are very necessary. So मैं decide नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या होना चाहिए. एंड आई एम ऑल्सो, मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, और अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो सचिन तेंदुलकर को अगर मैंने जितना देखा है, पढ़ा है खेलते हुए, तो 10-10 घंटे से ज्यादा वो ट्रेनिंग करते थे, और एट द एज ऑफ 9 और 10. तो मैं मानता हूँ कि उनका जो स्किल था वो बहुत जबरदस्त था, तो उस वजह से वो इतना आगे गए. और अगर मैं कहीं धोनी को देखता हूँ तो मुझे उसका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है. अगर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी बड़ा चैलेंज हो, तो ही इज वेरी काम. तो उसका जो विल पावर है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ये दो स्किल और विल इंडियन टीम में थी, इसीलिए इतने वर्ल्ड कप जीते इंडिया ने और इतने आगे बढ़े. तो हमारे साथ भी आज दो बहुत ही जो ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी है सूरत की, रवि सर और आशीष जी है. तो डेफिनेटली वी विल नो वेरियस थिंग्स अबाउट दैट. So thank you very much, Harsha, for giving me the opportunity. Thank you. Thank you so much, sir. So I guess the audience are excited to move ahead, to proceed ahead with our conversations. So here we go. So let's begin with the conversation with our speakers today. So talking about CA students, बहुत मेहनत लगती है, of course. Success rate देखें तो gradually passing rate of CA students बढ़ा ही है. If I'm not wrong, it is around 15 to 18%. So please correct me if I'm wrong related to the data.
एट द सेम टाइम ये सक्सेस रेशियो के साथ साथ अगर हम ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की बात करें, तो इट हैपेंस दैट स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया सीए बट इतना सारा सिलेबस देख के वो ड्रॉप आउट कर जाता है, स्टेप बैक कर जाता है, वो फाउंडेशन स्टेज हो, इंटर स्टेज हो या फाइनल स्टेज हो. सो आई वुड लाइक टू आस्क कि ये जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे, उनमें क्या स्किल और विल की कमी है, या क्या आप स्किल और विल ऑफ दी स्टूडेंट्स पे बात करना चाहेंगे? सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सीए रवि सर टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड address the issue. Good evening, everyone, and thank you, Harsha, and special thanks to CA Balkishan ji for having we both of us here. And the topic which they have picked up and has given to us is really very interesting. Skill or will. और सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जब कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या इवन कोई लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि इस काम को करने के लिए मुझ में वो स्किल है कि नहीं है. कईयों को अपनी स्किल पे डाउट होता है, कईयों में शायद स्किल होती है, पर बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट जिसमें वो है, उनका विल पावर डाउन होता है और वो छोड़ देते हैं, राइट. सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जो हर्षा ने भी सवाल पूछा कि सीए में काफी लोग ज्वाइन करते हैं पर कुछ ड्रॉप आउट कर लेते हैं, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? कि क्या वो इतना बड़ा सिलेबस देख के ड्रॉप आउट करते हैं, या उनमें कोई स्किल की प्रॉब्लम है, या कोई उसमें विल पावर कम होती है? तो लेट मी टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड. अगर पहले से ही आपको कह दिया जाए कि ये बहुत खतरनाक चीज है, तो अगर खतरनाक नहीं भी होगी ना, तो भी हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स है वो उसको उसी तरह से देखेंगे. वी विल बी अफ्रेड ऑफ इट, और वो छोटी सी भी चीज होगी तो हमें वो बड़ी दिखाई देगी. इट इज वेरी मच बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड विथ विच वी स्टार्ट द थिंग. मैंने अपने करियर में एक नोटिस किया है कि जब एडमिशन लेते समय कोई स्टूडेंट या पेरेंट्स ये पूछते हैं पहले से ही कि अगर वो सीए क्लियर नहीं कर पाया तो, या फिर वो नॉन इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम में कैसे करेगा तो, या फिर वो बहुत सारे कुछ नेगेटिव थॉट्स लेकर ही आते हैं पहले से, तो उनके ड्रॉप आउट के चांसेस होते हैं. बट जो स्टूडेंट ये एम लेकर आता है कि सर मुझे एक फ्यूचर में अच्छा करियर बनाना है, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा कोर्स है जब अपने शहर में रह के कर सकता हूँ, मुझे शहर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेडिकल की तरह 10-10 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके, मुझे और बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, मैं तो बीकॉम के साथ ही सिलेबस मैच करता है उसके साथ साथ हंसते खेलते उसको पास कर सकता हूँ और करूंगा. अब दोनों कैंडिडेट एक ही कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, पर डिफरेंट थॉट प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हैं. दोनों की अगर स्किल्स भी सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, बट जिस प्रोसेस से उन्होंने उस चीज को स्टार्ट किया वो प्रोसेस ही उनके एंड रिजल्ट को डिफाइन करता है. तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हम जब शुरू कर रहे हैं चीज को, उस समय हम किन लोगों से इंटरेक्ट करके, किन लोगों से एडवाइस लेकर और कैसे एनवायरनमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं. द एनवायरनमेंट हैज टू बी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज हम एक चीज अच्छे से जानते हैं कि अगर स्किल कम होगा तो विल पावर आपकी स्किल को डेवलप करवा सकता है, लेकिन अगर विल पावर कम होगा तो अलोन योर स्किल विल नॉट हेल्प यू टू डेवलप योर विल पावर. एंड वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट टू गेट सक्सेस यू नीड टू हैव both skill and willpower, not just will. I'm using the word willpower. So इतना क्लियर कर लें कि दोनों चीजों की जरूरत है, लेकिन स्किल आपके विल पावर को डेवलप नहीं कर सकती है, और विल पावर आपके स्किल को डेवलप कर सकती है. तो मैं अगर इसको रैंकिंग दूं तो मैं विल पावर को फर्स्ट रैंक दूंगा और फिर मैं सेकंड स्किल को सेकंड रैंक दूंगा, राइट. मैंने अपने करियर में भी ऐसे बहुत स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने अपने स्किल के लिमिटेशंस या उसके कॉन्स्ट्रेंट्स को ओवरकम किया है थ्रू देयर विल पावर, जिसको मैं कहता हूं कि नियत और काबिलियत दोनों चीजों की जरूरत होती है. कईयों के पास नियत होती है काम करने की, पर अफसोस काबिलियत नहीं होती है, पर वो अपनी सच्ची नियत और अपने ठोस निर्णय से अपनी काबिलियत को निखार सकते हैं. पर किसी में काबिलियत है पर अगर नियत नहीं है तो उसका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है. हम अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखते हैं जिनमें काबिलियत है पर अफसोस नियत नहीं है. नियत है
पर अफसोस काबिलियत नहीं है। जहां दोनों का संगम हुआ, ओके, वहां उसकी सफलता निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सो इन दोनों का संगम होना बहुत जरूरी है। और जो ड्रॉप आउट का सवाल पूछा हर्षा ने, उसका जवाब मैं यही दूंगा कि आप जिस माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके साथ जैसे फ्रेंड्स हैं, आपके जो मेंटर हैं और आपके जो सीनियर्स हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कोर्स को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने में, आपको उस कोर्स में कंटिन्यू रखने में। मैं जानता हूं अपने करियर में, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनके सीए बनने पर उनके पेरेंट्स ने मुझे फोन करके 10-20 बार नहीं, कम से कम एक फोन में 50 बार थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर थैंक्स। मतलब वो पेरेंट्स ये कहते हैं, कन्फेस करते हैं, सामने से बोलते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि कभी हमारा बेटा सीए बन जाएगा, पर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन गया। और वो क्लियरली बोलते हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था, पर ये हो गया, ये अचीव हुआ। तो इसका क्या कारण है? मैंने उनसे पूछा आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हुआ? क्या आपके बेटे में कोई बहुत ज्यादा स्किल डेवलप हो गई? बोला नहीं, हमारा बेटा तो एवरेज था पढ़ाई में, लेकिन आपके यहाँ पर जो एक माहौल था वो, और सेकेंडली उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसको बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट करते थे कि नवीन तुम ये जरूर पास कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, चलो मैं पढ़ रहा हूँ साथ में तुम भी बैठो, तुम भी पढ़ो, राइट। तो एक चीज हम समझे कि जब हमारे में एक इच्छा ये जागती है कि हम पढ़ाई करें, तो ये चीज को स्वीकार करके हमारे में उस पढ़ाई को करने की स्किल होगी, तभी हमारे में विल क्रिएट होगा। विल पावर तक तो हम जाएंगे, लेकिन कोई भी चीज का विल हमारे अंदर तभी क्रिएट होता है जब हमारे में उसका एक हिडन स्किल होता है। हम अपने स्किल को डाउट करते हैं थ्रू आवर विल, और हम अपने स्किल को डेवलप भी कर सकते हैं थ्रू आवर विल। सो वी हैव टू मेक इट क्लियर दैट हम ये चीज को समझें, इस चीज को एग्री करें, यार मेरे मन में कुछ करने का अगर विचार आ रहा है तो मैं उसको कर सकता हूं, इसलिए विचार आ रहा है। जैसे आज मुझे स्विमिंग में चैंपियन बनने का विचार नहीं आ रहा है बिकॉज ओके मेरी बॉडी फिजिक या मेरे में वो स्किल नहीं है, नॉर्मल सेट स्विमिंग कर सकता हूँ। लेकिन माइकल फेल्प्स, द वर्ल्ड चैंपियन इन स्विमर, आपने अगर उसकी बॉडी के एनाटॉमी और उसके मसल्स के कंस्ट्रक्शन को देखा हुआ, इट इज वेरी लाइक अ फिश इन ह्यूमन बॉडी, राइट। सो उसमें उतनी विल पावर भी है। माइकल फेल्प्स प्रैक्टिस डेली फॉर स्विमिंग, ओके, फॉर मोर देन 6 to 8 आवर्स। कहते इतना देर अगर कोई इंसान पानी में रहे तो उसकी स्किन जो है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाए, बट ही हैज अ गुड स्किन। क्यों? बिकॉज उसमें वो विल पावर है जिससे वो अपनी स्किन को भी मेंटेन कर पाता है, अपनी प्रैक्टिस को भी मेंटेन कर पाता है। तो अगर आप उसेन बोल्ट को देखेंगे जिसमें फास्टेस्ट रनिंग स्किल है और उसमें उतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर भी है, तो हमारे में जब कुछ काम को करने का डेवलप होता है तो हमारे सब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी समझना है कि अगर मेरे बच्चे को सीए करने का मन हो रहा है तो कुदरत ने उसके अंदर सीए बनने की ताकत छुपा रखी है, उसमें सीए बनने की स्किल है, तभी उसके मन में वो सवाल उठ रहा है। नहीं तो वो शायद मेडिकल में जाता, राइट। पर हर इंसान में हर चीज की स्किल नहीं होती है, हम भी मानते हैं, राइट। लेकिन हमारे में जब कुछ काम करने की इच्छा आ रही है तो बस उस इच्छा को पहचान लो, एक अच्छे माहौल में जाओ और लगे रहो। फिर स्किल कब डेवलप हो जाएगी और विल पावर कहां तक पहुंच जाएगी उसका आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, और आप अपने आप स्लोली एंड ग्रेजुअली सक्सेसफुल होते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। राइट। सो हर्षा, ओके, वी कैन कंटिन्यू अहेड देन। बिल्कुल बिल्कुल राइट रवि सर, तो आपने जो बताया कि दोनों का संगम बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल व्यूअर्स, रवि सर, आई एम नॉट एबल टू लिसन, सॉरी। एम आई ऑडिबल? Okay. Okay, fine. Okay, looking up to the viewers' response, it seems that I'm audible. So I'll continue going ahead. So Ravi sir ने बताया कि दोनों का संगम बहुत important है, and that's how you're going to proceed ahead. Plus उन्होंने ये भी जरूर बताया कि अगर वो एक चीज देखना चाहे तो उनके हिसाब से विल पावर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विल पावर स्किल को डेवलप कर सकती है, लेकिन स्किल विल को डेवलप करना मुश्किल है। तो ये हमारी रवि सर ने अपनी राय पुट करी अबाउट द स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स सी टू इट कि आप सही एनवायरमेंट में हो टू प्रोसीड अहेड। आइए जानते हैं अबाउट आशीष सर, उनकी क्या राय है अबाउट स्किल एंड विल। सो आशीष सर, जैसे कि रवि सर ने बताया कि स्टूडेंट्स का एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है,
तो इफ आई टॉक अबाउट, जब हम लोग सीए कर रहे थे लॉन्ग बैक, तो तब हम जब पढ़ते थे तो एक पढ़ने का एनवायरनमेंट हमेशा रहता था, हमेशा आजू बाजू पढ़ाई, सुबह रात को जब देखो सामने बुक्स ही अच्छी लगती थी. सो आज के डेट में डू यू थिंक स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो दे फेस मोर डिफिकल्टी, स्पेसिफिकली इफ आई फोकस अपॉन सोशल मीडिया एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू देम? So do you think that social media today being an interesting factor, addictive factor to youth, क्या ये उनके लिए एक obstruction है, और maybe for some other है, तो students के अंदर क्या will power होनी चाहिए so that वो अपने skill को achieve करने की तरफ ही focus रहे? So Ashish sir would like to listen it from you. Am I audible to all of you? Yes sir. Yes. Okay. Lights, camera, action, सब okay ना? Perfect है. Okay. Good evening all of you. हम आज बहुत एक स्पेशल टॉपिक के लिए मिले हैं, एंड बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच बीके साहब. आप, अगर मैं महाभारत से अपना ये ना आज का सेशन रिलेट करूं, यू आर भीष्म पितामह ऑफ दिस सेशन, द मैन बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे का आदमी है, बट believe me, he's doing very well for members, students and entire CA profession. So hats off to you and keep it up. We are obliged कि आप ये हमारे लिए कर रहे हैं. स्टूडेंट्स जिनको बीके साहब का चेहरा नहीं देखा है, देख लेना अच्छे से. बहुत 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 काम की चीज है हमारे लिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए. एंड अबाउट CA हर्षा गंगवानी नारंग, काफी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से वेबिनार को अरेंज करना, होस्ट करना एंड प्रेजेंट करना. Many students are getting benefit indirectly. शायद हर्षा को थैंक्स ना कह पाए. On behalf of them, I thank you very much because I've attended your sessions. You are doing it perfectly, just perfect. Perfect is the word. तो काफी अच्छा है कि हम आज मिल रहे हैं. एंड हर्षा, यू आर कृष्णा फॉर महाभारत, अगर उसको ना सब्स्टिट्यूट कर ले, लेडी कृष्णा, थोड़ा चंडर चला लेना, ठीक है? Wow, I've been loving Krishna since my childhood, पर ऐसा कभी औदा मिलेगा ऐसा भी सोचा नहीं. For today's session, you're Krishna. And Ravi sir, the credit for making Surat a ranker city goes to you only. So we are very happy to be here and interacting with you. काफी समय के बाद हम मिले virtually. And thanks Ashish, and equal credit goes to you and your team also. You people have been consistently working very well, okay, and we have created such a positive environment in the city. I appreciate your efforts very well. Yeah, same to you sir. And बस हम साथ में मिलके कुछ सूरत के लिए या CA फैटर्नी के लिए कुछ नया करें, and वही हमारा efforts रहेगा. And all the viewers, शायद सेंचुरी लग चुका है, 9400 के आसपास जा रहा है. All the viewers, we welcome you. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने है. इसका एक एक मिनट, एक एक पल सुन लेना और ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स इन योर लाइफ, इन योर करियर, खास करके CA करियर. हर्षा, यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, द हॉट टॉपिक. स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई सबसे बड़ा टाइम स्नैचर, टाइम वेस्टर है तो सोशल मीडिया. आई थिंक ऑल द ऑडियंस विल एग्री विथ मी बिकॉज ये है, दैट्स अ फैक्ट. We were lucky, me, Ravi sir and BK sir, Harsha, कि हमारे टाइम पे distractions थे, but इतने ज्यादा नहीं. थोड़ा कुछ था, but we were at that time जहाँ पे ये सारे सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट फ्री नहीं था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट था, तो हमारे लिए distractions थे but कम थे. आपका टाइम बहुत चैलेंजिंग है because you are surrounded by lots of distractions, and in that case आप CA कर रहे हैं जिसमें पूरा कंसंट्रेशन चाहिए. दरिया जितना सिलेबस है, 4 साल आप मुंडी ऊपर नहीं कर सकते, इतना पढ़ना पड़ता है. तो फिर कैसे हाउ टू हैंडल दिस? देखो, अगर मैं ऐसा कहूँ आपको तो कोई मेरी मानेगा नहीं कि साइन आउट, अनइंस्टॉल ऑल सोशल मीडिया थिंग्स. दैट्स नॉट पॉसिबल. अभी आप पढ़ भी रहे सोशल मीडिया की मदद से या इंटरनेट की मदद से या घर बैठे, तो दैट्स नॉट एडवाइजेबल, दैट्स नॉट प्रैक्टिकेबल, दैट्स प्योरली थियोरेटिकल एडवाइस हो जाएगा मेरी तरफ से कि आप यूज करो ही मत. ब्यूटीफुल. बट द थिंग इज दैट आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. आपने खुद ने डिसाइड किया होना चाहिए कि इन अ डे हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स यू आर गोइंग टू गिव टाइम टू योर सोशल मीडिया. डू इट. इफ यू आर नॉट डूइंग, डू इट. हैव अ स्पेसिफिक टाइम. देखो, आपको इतना कभी अर्जेंट मैसेज नहीं आता है कि भाई अगर आपने वही टाइम पे नहीं देखा तो कुछ करोड़ों का नुकसान हो जाएगा.
Modi is not giving you message and waiting for your reply कि भाई क्या करे, अगला पॉलिसी क्या रखे, नहीं है ना, इतना अर्जेंट कुछ भी नहीं है. अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है आपका स्टडी, आपका करियर. Right. Never message is so important कि you have to reply instantly. हाँ, पूरे दिन के शाम को देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप ये करेंगे तो आपके फ्रेंड्स की, आपके सराउंडिंग की आदत हो जाएगी कि आपसे वो अर्जेंट रिप्लाई एक्सपेक्ट करेगी नहीं. जैसे मेरा नाम इसलिए खराब है कि मैं इंस्टेंटली कॉल नहीं उठा पाता, और अभी मेरे सब लोग यूज्ड टू हो चुके कि ये अगर कॉल ना उठाए, मतलब मैं अगर कॉल ना उठाऊं तो वो बुरा नहीं मानते, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट इंटेंशनली, बट माय थिंग इज दैट कि अगर कोई पर्सन सामने है तो उसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, नॉट द पर्सन हु इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी. ये मेरा फिलोसॉफी, बट उसकी वजह से थोड़ी गालियां भी पड़ती है, बट मैं खा लेता हूँ. बट पीपल नो दैट कि ये ऐसा ही है. तो आपको आपका एक इमेज बिल्डअप करना पड़ेगा. मैं अगर कोई स्टूडेंट को, आप जो व्यूअर्स हो उसमें से किसी को मैसेज करूं, मुझे पता होना चाहिए इसका इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आने वाला है. आई विल वेट फॉर इवनिंग, रिप्लाई आ जाए. तो आपको ऐसा नहीं पूरा संन्यास ले लेना है, हर मतलब भगवे कपड़े पहन के बैठने, मुंडन करवा देना है, ऐसा नहीं करते भाई. आप इंसान हैं, सीए स्टूडेंट के साथ साथ आप इंसान हैं. एंजॉय द लाइफ, एंजॉय द सराउंडिंग, बट विथ अ लिमिट. यू मस्ट नो व्हाई टू पुट फुल स्टॉप. आप डिसाइड करें कि आप सोशल मीडिया को कितना टाइम दें. सोशल मीडिया शुड नॉट डिसाइड कि वो आपसे कितना टाइम ले. वाइस वर्सा हो रहा है ना. वंस यू स्टार्ट इंस्टाग्राम, एक के बाद एक प्रोफाइल वीडियो देखते जा रहे, यू डोंट इवन नो दैट कि आपका कितना इंपॉर्टेंट टाइम वहां चला गया. और उसके बाद बुक लेके बैठेंगे, माशाल्लाह क्या पढ़ेंगे. सर थक गई आंखें, थक गया दिमाग. कुछ कमेंट्स ऐसे जो हमारे दिल को छू गए, नहीं समझ में आया. सब आप एक अलग जोन में चले गए. और ये कोई स्विच तो नहीं है, प्रेस किया रीडिंग मोड आया, प्रेस किया सोशल मीडिया मोड आया. ऐसा नहीं होता है. वी आर सिंपल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर अफेक्टेड बाय इमोशंस. कंट्रोल योर इमोशंस. सोशल मीडिया इज अफेक्टिंग इमोशंस इन अ वेरी बिग वे. इसके बहुत सारे सर्वेज होते हैं कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं. प्रोडक्टिव भी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स. तो खास बहुत सारे सर्वे हो चुके हैं, और इसके नतीजे ना लॉन्ग टर्म होते हैं. You keep on using it for 30 years, 20 years, then उसके negative effect start होते हैं. तो खास be away from all such kind of thing which is actually bullshit. Temporary pleasure है, याद रखना. Temporary pleasure की वजह से आपका long term का happiness sacrifice ना हो. That's very important. Because अगर वो manage हो रहा है तो study manage. समय तो चाहिए ना पढ़ने के लिए, तो उसमें से निकालना पड़ेगा. एक सिंपल मैं आपको एडवाइस देता हूँ. Everyone listen it carefully. कैसे करें सर? 24 आवर्स से मेरे और आप सबके पास 24 आवर्स में से मिनिमम टाइम जो हमको अपने रूटीन के लिए चाहिए वो माइनस कर दो. स्लीपिंग टाइम, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, रिफ्रेशिंग टाइम, बैलेंस टाइम में से हाँ गिव सोशल मीडिया 30 मिनट्स, मैक्सिमम हाफ एन आवर से लेके 1 आवर. बैलेंस टाइम Ashish sir, I think some network issue. Others can hear me. क्या Yeah, Ashish sir, आप freeze हो रहे हैं. Your picture. Let me just have a check. Ravi sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, yes. So I think Ashish sir, can you hear us? We'll wait for a few seconds to Ashish sir to get himself connected with the connectivity issue. All right. All right. ठीक है. तो जैसे ही आशीष सर ज्वाइन इन होते हैं वापस से, I'll still check. Ashish sir, are you here? Okay, I think there is some connectivity issue. So till then we'll proceed ahead, and as soon as Ashish sir joins us back, we would love to listen to him about बहुत interesting, वो बोलते हैं ना बताने जा रहे थे और ad आ गई. So I'll be waiting for that interesting part. मतलब वो बोले कि ये ध्यान से सुनना, and ad आ गई. Anyways, we'll get back to him as soon as the connectivity issue gets resolved. Meanwhile,
we'll proceed ahead with our discussion related to skill and will. So yes, Ravi sir, हमने आपके इंट्रोडक्शन में सुना CA स्टार्स के बारे में. तो CA स्टार्स की बात जब मैं थोड़ी समझ रही थी तो उनको बहुत ज्यादा रिजेंबल करी सुपर 30 से. तो आप CA स्टार्स के बारे में ये बताते हुए ये जरूर हाईलाइट करें कि आप इन बच्चों के पास जो पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास पहुंचते कैसे हैं? सी, एजुकेशन को मैंने शुरुआत से बहुत ही नोबल और पायस वर्क समझा है. और अभी कुछ देर पहले ही मैं एक जन से बात कर रहा था, एक बहुत सीनियर सूरत के मेंबर हैं SGCCI के, तो उनसे भी यही बात हो रही थी कि हमारी सोसाइटी में हम जब किसी से पूछते हैं, युवाओं को पूछते हैं, बच्चों को पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो लोग कहते हैं कि हम एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहूंगा, कोई कहता है कि मैं सेलिब्रिटी बनूंगा, स्पोर्ट्समैन बनूंगा, ओके, मॉडल बनूंगा, राइट. लेकिन क्या हम कभी किसी को ये सुनते हैं बहुत प्राउडली और बहुत ज्यादा लोग बोलते हुए कि हम टीचर्स बनेंगे, हम लोगों को एजुकेशन में हेल्प करेंगे, हम एजुकेशन स्प्रेड करेंगे? अफसोस नहीं. जबकि हमारा जो देश है, इसकी संस्कृति और इसके इतिहास में तो जितने भी नामचीन लोगों के नाम आप सुनेंगे, चाणक्य हो, या फिर गुरु द्रोणाचार्य हो, या कृष्ण को भी जगत गुरु कहा जाता है, कृष्ण भी सारथी के रूप में गुरु का रोल वहां निभा रहे थे. तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज टीचर को लेकर या शिक्षा को लेकर, शिक्षक को लेकर स्टूडेंट्स तो रिस्पेक्ट करते हैं नो डाउट, लेकिन एक पूरा समाज एक शिक्षक को कितना रिस्पेक्ट करता है और उसको एक प्रोफेशनली उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो समझे, तो ये बहुत जरूरी है. मैं CA स्टार्स के बारे में अब ये कहूंगा, आपको बताऊंगा. ऐसी मैंने अपने करियर में शुरुआत से ही, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, बहुत सारे बच्चों को जो भी हमारे पास पढ़ने आते, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर थी, हमने उनको बिना फीस के पढ़ाया. एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक प्रोग्राम में था, कॉन्फ्रेंस में था, वहां पे एक जो सर्व करते हैं पानी या नाश्ता, तो एक लड़का पानी की ट्रे सर्व कर रहा था. वो पानी की ट्रे सर्व किया, फिर बोला सर आप CA पढ़ाते हैं? बोला हाँ. बोला सर मेरे भी CA करने की बहुत इच्छा थी. तो मैंने बोला क्यों नहीं किया फिर CA आपने? बोला सर फिर CA की फीस में कैसे अफोर्ड करता, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बहुत पुअर थी, मेरे फादर नहीं थे और मेरी मम्मी घर काम करती थी, तो मैं भी यहाँ पे ये है ना वेटर का काम करता हूँ. पर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे 12th में, पर उसके बाद हमने पढ़ाई छोड़ दी. तो उस समय मैंने उसको बोला कि तुम अगर मेरे पास आते, मुझे पता होता, तो मैं तुम्हें पूरा CA फ्री में पढ़ा देता, और तुम CA बन भी जाते, शायद पूरी जिंदगी तुम्हारी बदल जाती. तो उसने एक चीज कहा, पर सर मुझे कहाँ पता था, कभी किसी ने मुझे बताया नहीं ऐसा. उस दिन मुझे लगा कि अगर मैं किसी को मदद कर भी रहा हूँ, CA पढ़ा रहा हूँ, तो अगर ये हम बाहर नहीं बताएंगे लोगों को, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उसको इसका फायदा कैसे मिलेगा. तब मैंने डिसाइड किया कि मैं ये चीज सब लोगों को बताऊं, और उसके लिए शुरुआत में हम लोग ने न्यूज़पेपर्स में पब्लिक नोटिस निकाली कि इस तरह से हम एक टेस्ट लेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स ने 12th किया है और आगे CA पढ़ने की इच्छा रखते हैं, मैंने लिखा था स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ उनकी इच्छा है CA करने की, तो वो टेस्ट के लिए अप्लाई करें, इसका कोई चार्जेस नहीं है, और अगर वो इसमें सिलेक्ट होते हैं तो हम उन्हें CA का पूरा एजुकेशन विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे. शुरुआत में बहुत बच्चे आए भी और अच्छे अच्छे बच्चे आए, पर पहले सालों में तो लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई CA जैसा कोर्स बिना कोई फीस के क्या फ्री में पढ़ने को मिलेगा, और क्या मिलेगा तो क्या बहुत अच्छा पढ़ने को मिलेगा. तो इसका भरोसा करवाने में भी मुझे टाइम लगा. हमने फिर दूसरे शहरों से कुछ लोगों को पता चला, उन्होंने हमें पूछा, तो हमने बोला उनको रहने खाने की हमको सुविधा देनी होगी. और ऐसे बच्चे, हर्षा मैं आपको बताता हूँ, जो गांव से आए हैं, वो आप उनको देखोगे तो आप लोग सर ये CA पढ़ पाएगा, ये CA पढ़ेगा, और उसके अंदर वो पोटेंशियल मुझे कहीं दिखा, और मुझे बहुत खुशी हुई. आज ऐसे बच्चे जिनके फादर रिक्शा चलाते थे, लारी में कपड़े बेचते थे, लड़का खुद पार्ट टाइम कोई फैक्ट्री में जॉब करता था, फैक्ट्री शेयर के ऊपर सोते थे, कच्चे मकान में रहते हैं, पापा कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कड़िया मजदूर है, खुद कड़िया का काम करते हैं, और आज उनका लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है. सो CA एजुकेशन या कोई भी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपको एक डिग्री नहीं दे रही है, आपको एक मान्यता, आपको एक रिकॉग्निशन, आपको एक ब्रांड दे रही है, आपको पावर दे रही है, आपके और आपके परिवार की पूरी जिंदगी बदलने का मौका दे रही है. और अगर हम अपनी सोसाइटी के जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको अगर ये मौका दे सकते हैं, तो शायद हमसे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं है.
फिर मैंने धीरे धीरे करके इस प्रोग्राम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाए और पिछले 4 साल से हम हर साल इस प्रोग्राम में 45 जितने स्टूडेंट्स लेते हैं। कभी 2-4 बच्चे ज्यादा लेते हैं, कभी 2-4 कम, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वैसे, फिक्स नंबर नहीं रख रखा है। और आज के दिन में हमारे पास 180 से ऊपर बच्चे इस प्रोग्राम के अंदर पढ़ रहे हैं, बिकॉज 45 बच्चे 4 साल के लिए ज्वाइन होते हैं। तो हम लोग ने फाउंडेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट 1 साल का, उसके बाद 3 साल का फाइनल, इस तीनों 3 लेवल के लिए हर साल हम सीए स्टार्स का सिलेक्शन करते हैं। और इन स्टूडेंट्स ने जो अपनी मेहनत से, अपने विल पावर से जो रिजल्ट क्रिएट किए हैं, 90% सुपर स्टूडेंट्स पास करते जा रहे हैं। और मैं विल पावर पे एक स्टूडेंट का एग्जांपल मुझे ध्यान आता है, शिव शंकर अग्रवाल का। हमने जब टेस्ट दी थी तो उस टेस्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ था। उसके 12th के मार्क्स भी कुछ 68% या 52% थे 10th के मार्क्स, तो हमने उसको नहीं रखा था। पर उस लड़के के पिताजी ने और उसने कम से कम 100 बार हमें रिक्वेस्ट किया, फोन किया, राजस्थान से था। फिर वो कोई ट्रेन पकड़ के आके सूरत में हमारे ऑफिस के बाहर बैठ गया कि मुझे तो सर आपके पास पढ़ना है और मैं फीस नहीं कर पाऊंगा, आप प्लीज हमें पढ़ाइए। हमने कहा कि हमने ऑलरेडी 45 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया है और आप इसमें नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हो। पर उस बच्चे की विल पावर को देखकर मैंने डिसाइड किया कि चलो इसको पढ़ाने की कोशिश तो करते, देखते क्या करता है। मुझे तो सच में लगता कि ये शायद सीपीटी भी पास नहीं कर पाएगा, और उसने 150 सुपर मार्क्स लाए, मतलब 75% सुपर मार्क्स लाके सीपीटी पास किया। फिर मुझे लगा चलो देखते हैं इंटरमीडिएट में कैसा करता है। और इंटरमीडिएट में उसने इतनी रेगुलर मेहनत की कि दोनों ग्रुप इंटरमीडिएट का फर्स्ट डे में पास कर गया। और अभी वो सीए फाइनल के लास्ट स्टेज पे है, अभी वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देगा May 21 में। तो ऐसे बच्चों को देखकर, उसका सिर्फ मार्क्स नहीं, उसका नॉलेज भी काफी अच्छा है। अगर आप उसे कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर पूछेंगे तो आपको बहुत सही तरीके से एकदम इंग्लिश में प्रॉपर्ली जवाब देगा, जबकि वो हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा है। सो सीए स्टार्स प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं हर्षा आपके इस टॉपिक के साथ कनेक्टेड है कि जो को अपने स्किल पे भरोसा नहीं था, पर उनमें विल पावर थी कि मुझे तो करना है, मुझे बनना नहीं तो मेरी जिंदगी में कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो वो अपने उस विल पावर को ड्राइव करते हुए, सक्सेसफुली अपने स्किल्स को निखारते हुए बहुत आगे बढ़े। मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने अपने स्किल्स को, इसके ऊपर एक और एग्जांपल दूंगा। जब आपने मेरे इंट्रोडक्शन में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की बात की थी, जो सूरत की हिस्ट्री में सबसे पहली बार AIR1 लेकर आया था, वो लड़के अजय बंका, अभी 2 हफ्ते पहले अजय बंका का रैंकर्स कैफे में इंटरव्यू हुआ था। उसका जब वीडियो रिलीज होगा तो उसमें सुनिएगा, उसने कहा था, और वो इस बात को हर फोरम में कहता है विद्यार्थियों के बीच में, स्टूडेंट्स को जब भी मोटिवेशन देना होता है, तो अजय की ये बात एक माइलस्टोन बात है। अजय अपनी स्कूल लाइफ में 12th तक कभी 80% सुपर स्कोर नहीं किया, स्कूल में कभी अपने कोई क्लास या डिवीजन में टॉप 10 रैंक में नहीं आया। लेकिन जब उसने सीए की इंटरमीडिएट की पढ़ाई चालू की तो उसने मुझे कहा कि उसकी थियरी बहुत वीक है। उसने कहा कि स्कूल में थियरी में मार्क्स ही नहीं आते। तो फिर उसने डिसाइड किया, मेरे साथ उसकी कंसल्टेंसी रही, मेरे अंदर पूरा पढ़ा था, मेरे फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था, कि आप थियरी पे रेगुलर वर्क करोगे पर अपने प्रैक्टिकल्स की जो मजबूती उसको छोड़ोगे नहीं। एंड अपने थियरी के ऊपर अपने विल को स्ट्रॉन्ग करते हुए उसने रेगुलर वर्क किया, और जो थियरी की उसकी स्किल नहीं थी, उस 3 थियरी पेपर, ऑडिटिंग में, लॉ में और इन्फोटेक एसएम में, ही स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन इंडिया एंड ऑल इंडिया रैंक 1 राइट। सो दैट इज अ वेरी बिग मैसेज टू एवरीवन। अगर आपको लगता है कि आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ओके, इतना मैं जरूर मानता हूं। और यही लाइन में कहूंगा कि अगर आपके मन में विल का एक अंकुरित भी फूटा है, एक छोटा सा बीज भी पैदा हुआ है, तो विश्वास रखो कि आप कर सकते हो। और जब हम विश्वास रखेंगे कि हम कर सकते हैं, तभी हम उस लाइन में आगे बढ़ेंगे और अपनी पूरी शिद्दत से उसमें मेहनत करेंगे। तो जो पूरी शिद्दत से मेहनत करने की बात आती है, वो अपने विल पावर से डेवलप होती है। स्किल उसको निखारता है, स्किल उसको आगे लेके जाता है, पर विल पावर के बिना स्किल उसको आगे नहीं लेके जा सकता है। चलिए हम देखते हैं कि हमारे मित्र आशीष जी शायद अगर अभी तक जुड़ पाए हो तो प्लीज चेक इट। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स देके ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाया। और ये जो आपने बात बताई, मैं इस पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहूंगी कि जो सीए स्टार्स के बच्चे हैं, या ये जो आप बता रहे थे थियोरी नहीं कर पा रहा था, उसने अपने विल पावर से डेवलप किया। सो इज द आंसर टू इट इज हार्ड वर्क? इट इज नॉट जस्ट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब कि आपने शायद बिना दिमाग लगाए मजदूरों की तरह काम की है। मैं हार्ड वर्क को पसंद नहीं करता, बिकॉज हार्ड वर्क एक नेगेटिव वर्ड है। इसमें एक वर्ड हार्ड ही लोगों को बता रहा है कि यार बहुत मुश्किल है यार, हार्ड है। राइट, कि यू जस्ट प्रोसीड, आपको करना है, एंड फ्री फ्लो में काम होना चाहिए, मस्ती में काम होना चाहिए।
राइट। हमको तो ये हार्ड वर्क को वर्ड ही हटा देना है। मैं दो चीजों को पसंद नहीं करता हूँ, हार्ड वर्क और कंपटीशन। हार्ड वर्क की जगह कोशिश करो फ्री फ्लो वर्क हो, तभी हम उसको कंटिन्यूस कर सकते हैं, लंबे समय तक कर सकते हैं। बिकॉज आप एक बार हार्ड वर्क कर लोगे, एक बार सक्सेस अचीव कर लोगे, आगे क्या होगा? अगर मुझे पढ़ना हार्ड वर्क लगता है तो क्या सीए बनने के बाद जब मैं कमाने लग जाऊंगा तब मैं क्या पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्या हर्षा आपको इस प्रोग्राम को होस्ट करने में हार्ड वर्क लग रहा है? हर्षा, क्या आपको इस प्रोग्राम को होस्ट करने में हार्ड लग रहा है? Not really, yeah. You are so relaxed, okay, you are so like and happy and glowing. Yeah. Right? So you have taken so many webinars and you have taken interview of so many personalities, right? Because you enjoy this thing. You Right. take it in a free flow way. So हमें लोगों की मानसिकता में बचपन से हमने स्कूलों में बच्चों के दिमाग में डाल दिया कि तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क करना है। नहीं, तुम्हें सक्सेसफुल होने के लिए फ्री फ्लो वर्क करना है, कि मस्ती में काम करना है। बस ये देखो तुम काम क्या कर रहे हो, क्या वो काम तुम्हें कुछ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तुम्हें कुछ अचीव करवा रहा है। अगर वो अचीव करवा रहा है तो उसमें तो और मस्ती और खुशी। और दूसरी चीज मैंने कहा कंपटीशन। कंपटीशन भी एक नेगेटिव फीलिंग है। कंपटीशन मतलब किसी को पीछे करना, किसी के साथ जेलसी होना। ओके, कंपटीशन में होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। खुद आगे बढ़ो और अपने साथ जितने लोग हैं उनको आगे बढ़ाओ। खुद के मार्क्स आगे आने चाहिए पर अपने फ्रेंड्स के मार्क्स भी साथ में आगे आने चाहिए, राइट? तो ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर कोऑर्डिनेशन, ओके, एंड अ फ्री फ्लो वर्क। बिकॉज सक्सेसफुल होने का मकसद क्या है? कि हम अपनी एक सुंदर लाइफ जी सके, एक अच्छी सोसाइटी बना सके, हम सबको मदद कर सके। हमारे सीए स्टार्स में भी जो बच्चे लोग साथ में रहते हैं, 45 जितने स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होते हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे बाहर से आते हैं, और उनको हम जब साथ में रखते हैं तो उनके सक्सेस के पीछे उनका जो पीयर ग्रुप है, जो साथ में सब लोग जोश से मेहनत करते हैं कि हमको पास होना है, हमको मेहनत करना है, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उनके बीच में कंपटीशन होता ही नहीं है, वो सब एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमको साथ में आगे बढ़ना है। ओके, तो वो सक्सेसफुल सही मायने में सक्सेसफुल होगा जहाँ पे कोई नेगेटिव एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। राइट, थैंक यू सर। सो आई सपोज ऑडियंस को ये रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स में सच में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है कि वो अपने विल के थ्रू अगर स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो हैव फ्री फ्लो ऑफ वर्क एंड कंपटीशन नहीं, हैव कोऑर्डिनेशन के साथ में आगे बढ़ेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे एंड पहुंचेंगे। राइट, थैंक यू सो मच रवि सर। I would like yes, thank you. I would like to look forward to Ashish sir. Are you here? Ashish sir. आई थिंक ज्वाइन नहीं किया आशीष सर ने अभी, मैंने कॉल भी किया था उनको। आशीष जी दिख तो रहे हैं? आशीष जी अनम्यूट करिए अपने आप। नॉट अनम्यूटेड, दैट्स व्हाई मेरा वीडियो ही चल रहा था, एंड बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी लास्ट टाइम आई वाज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। यस हर्षा, कंटिन्यू। हम अभी भी ब्रेक के बाद वाली फीलिंग में, आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे थे, बता दो प्लीज अब। मैं बस वही कह रहा था कि आपका जो सेल्फ कंट्रोल होता है कि यू शुड बी एबल टू ऑलवेज डिसाइड दैट कि हाउ मच टाइम टू बी गिवन टू व्हाट। 24 घंटे में से माइनस करते जाओ आपका मिनिमम टाइमिंग्स, एंड बचा हुआ टाइमिंग्स होना चाहिए आपके करियर के लिए, नॉट एनीवेयर एल्स। तो जब टाइम मैनेजमेंट होगा तो ही 4 साल में इतना वास्ट सिलेबस, इतना टेक्निकल सिलेबस विथ ट्रेनिंग्स आप क्लियर कर पाएंगे। सो द बिगेस्ट स्किल दैट यू नीड टू मास्टर इज टाइम मैनेजमेंट। Where you are giving your 24 hours, कहाँ जा रहा है? मिनिमम चीजों में जाने के बाद जो बचा हुआ समय है, it has to be to the career. So that's very important point. Asha, you may proceed with next question. Right. So सर ने बहुत अच्छे से बताया कि कोई आपको फोन करता है तो डोंट कंसिडर कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही, सामने वाले को आपकी जरूरत है, होल्ड ऑन, जैसे ही आप फ्री हो रिप्लाई बैक। राइट, अगर आपने 1 घंटे बाद मैसेज देखी है बिकॉज यू आर ऑक्यूपाइड इन योर से फॉर एग्जांपल योर सीए स्टडीज, इट डज नॉट मीन कि आप बुरे बन जाओगे, इनफैक्ट आपको अप्रिशिएट करेंगे, जैसे आज आशीष सर को सब अप्रिशिएट करते हैं, यार वो तो बिजी है, फ्री होके जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। सो यस, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल आंसर। सर आपसे आगे ये पूछना चाहूंगी कि आप आज टीचिंग फील्ड में हैं, तो आप बच्चों को देख रहे हैं किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, और उसी बेस पे आपने आज बच्चों को ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के बेस पे टाइम मैनेजमेंट और ऑल सब बताया। एट द सेम टाइम अगर मैं थोड़ा रिवाइंड करूं तो सर आप कॉर्पोरेट से आए थे, आई मीन यू यूज्ड टू वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड फिर आप टीचिंग फील्ड में शिफ्ट हुए। अगर मैं इसमें कुछ और ऐड करूं तो आप अकेले नहीं, आपकी वाइफ
सीए प्राप्ति सिमरिया एज वेल कॉर्पोरेट्स में थी, और आज दोनों मिलके अपना टीचिंग फील्ड में है एंड बहुत अच्छे से उस चीज को चला रही है। तो जब आपने कॉर्पोरेट से टीचिंग सेक्टर में शिफ्ट किया, तो सर आपने एक दूसरे के साथ काम करने का सोचा, मतलब पर्सनल लाइफ में तो है ही एक दूसरे के साथ ही साथ आपने एक दूसरे के साथ वर्क प्लेस में काम करने का सोचा। तो अगर मैं विल और स्किल को इसमें इंटीग्रेट करूं तो मैं इस तरीके से पूछना चाहूंगी कि आपने एक दूसरे में क्या स्किल्स देखे कि आपकी विलिंगनेस टू वर्क विद ईच अदर बढ़ी? That's very interesting question you asked, Harsha, and मुझे पहली बार ये सवाल पूछा जा रहा है, and I would love to answer. जैसे हर्षा ने बताया, after passing my CA and MBA, I worked in corporates for almost 3 years. That was my career plan. I should work in corporates to know about the corporate gimmicks and all. But मैं जब स्टूडेंट था तब भी पढ़ा रहा था, जब मैं कॉर्पोरेट्स में था तब भी पढ़ा रहा था, और जब मैंने कॉर्पोरेट्स के एग्जिट मारा आज भी पढ़ा रहा था। सर ये जो पढ़ाने का कीड़ा होता है ना, सादी भाषा में बोले तो कीड़ा, वो कीड़ा पहले से ही था, पता नहीं कहाँ से आया, वायरस से घूम के आया। बट आई लव टू टीच इन MBA classes when sir goes out, because I was doing CA, तो जो स्टूडेंट्स ओनली MBA कर रहे हैं उनको ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब बहुत डिफिकल्ट लगता है, वायरस से समझ में नहीं आता है, टैली नहीं होते। तो जैसे ही सर ने एग्जिट मारा मैं वर्चुअल सर बन जाता था, और सब जैसे मेरे फ्रेंड्स मेरे स्टूडेंट बन गए, और आई यूज्ड टू टीच। तो वो वहां से स्टार्ट करके जब भी डिफिकल्टी, आई वाज स्टडीइंग इन लाइब्रेरी, एक्चुअली आई कंप्लीटेड माय सीए इन अहमदाबाद, सो आई यूज्ड टू स्टडी इन लाइब्रेरी, दैट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो मेरा ऐसा नाम, बदनाम तो नहीं कह सकते, बट ऐसा नाम हो गया था कि सर कुछ डाउट है तो इसको पूछ लो, कुछ डाउट है तो उसको पूछ लो, लाइक दैट। तो ये इंप्रेशन से आगे बढ़ते बढ़ते मैं जब कॉर्पोरेट्स में था, इट वाज MNC, तो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग, सो आई वाज फ्री सैटरडे संडे, व्हाट टू डू, जस्ट स्टार्टेड टीचिंग इन MBA कॉलेजेस, CA क्लासेस एंड ऑल, बिकॉज़ वो काफी मुझे ना किक मिलता था ना, सलमान खान के लैंग्वेज में बोले तो किक मिलता था, किक मैं मिस नहीं करना चाहता था। सैटरडे संडेज दैट वाज माय वीकेंड प्लान, लेट्स गो टू सम इंस्टीट्यूट एंड टेक लेक्चर्स एंड एंजॉय विद स्टूडेंट्स, बिकॉज़ मैंने स्टूडेंट्स कभी देखा ही नहीं, they are always friends. I always keep them as a friend so that they become free to ask me whatever they feel, wherever. And मुझे एक communication अच्छा रहे, so I will take students as friends. Then Prapti was also working in corporate after she passed CA. Post marriage we decided कि let's do what we love. That was the thing. And चाइना में ऐसा कहा जाता है कि 2 काम आप कभी पैसे के लिए नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। One is to be a soldier, second is to be a teacher. It has to be out of passion. It has to be out of your inner insight. Otherwise, if you do it for money, कभी नहीं होगा। Teaching is not about knowledge. Who have knowledge, they can teach, not like that. Ravi sir will agree with me कि वो ऐसा चीज नहीं है कि जो हम knowledge है तो सामने वाले को दे, that's the teaching. As simple as that, no. टीचिंग ऐसा है कि सुबह से शाम तक लेक्चर हो, थकान नहीं लगती, सुबह से शाम तक लेक्चर लेने में कोई गिल्टी फील नहीं होता है कि मेरा ये मिस हो गया, लाइक दैट। इट्स एज इफ यू आर चिट चैटिंग विथ योर फ्रेंड्स, इंटरेक्टिंग विथ योर फ्रेंड्स, मतलब इतना ही लाइट लगता है जब आप एक रियल सेंस में आपके अंदर से एक टीचर है, अंदर एक टीचर। तो ऐसा था कि हम जब ये सोच रहे थे कि व्हाट टू डू, बिकॉज कॉर्पोरेट्स में हमको कंटिन्यू करना ही नहीं था पहले से, it was that let's try some corporates to learn about some things, but then we decided कि अच्छा अगर हम दोनों, प्राप्ति को भी, actually I should admit in public forum that प्राप्ति is a better teacher than me, because उनके जो fan following है बहुत सारे audience में भी है आज, she's just best teacher. I learn from her because the way she teaches students ध्यान में चले जाते हैं, students कोई हिलता नहीं, पूरा मतलब माहौल बना जाता है, 2 घंटे 3 घंटे पता नहीं चलता। So I learn from her, like how you hold students for so many hours, even if it's theory like law, accounts, she is master of accounts, but law में भी सर कैसे बिठा देते हैं और स्टूडेंट हिले नहीं, कोई आगे पीछे ना हो, जो भी ऑडियंस है वो कमेंट कर सकते हैं, आई एम टॉकिंग राइट और रॉन्ग। तो वही था कि अच्छा इतना पैशन है, why not to convert passion into profession? So always I tell about myself, I am chartered accountant by profession but a professor by passion. तो वही मेरा चीज था कि मैं इसी लाइन में आगे बढ़ूं, क्यों ना, मतलब जब
एक चीज जो आपको यू आर गुड एट, यू ऑल्सो एंजॉय इट, सो लेट्स डू इट, लेट्स जैसे मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मी, माई वाइफ, माई ब्रदर, वी ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी वर फ्रॉम गुजराती मीडियम. सो हमने जैसे पास किया था और स्मूथली पास किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वी थॉट कि व्हाई नॉट एवरीवन कैन डू दिस, जो हमने किया वो बाकी सब भी कर सकते हैं. सो वी डिसाइडेड कि लेट्स डू इट. एंड जो स्टूडेंट्स का ड्रीम है सीए बनना और कोई भी रीजन से अटक रहा है, वी शुड बी हेल्पफुल टू दैट. सो हमारा स्टोरी रेप्लिकेट हो, मेरे जैसे और आशीष बने और प्राप्ति बने और हमसे भी आगे बढ़े, उसमें हमको बहुत खुशी मिलती है. और वो खुशी कोई और चीज में नहीं है, करोड़ों रुपए में नहीं है. जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे आगे बढ़ते हैं, दैट्स द बिगेस्ट हैप्पीनेस. रवि सर आल्सो विल एग्री विद मी. जो स्टूडेंट्स के आगे बढ़ने से जो खुशी मिलता है ना, वो स्वर्ग में भी नहीं है. मतलब हम जीते जागते स्वर्ग का एहसास करते हैं एवरी ईयर व्हेन स्टूडेंट पास आउट and they come with tears in their eyes and happiness tears. And the parents and double happy होते parents, they just feel that कि अच्छा दुनिया जीत ली because मेरा बेटा या बेटी आज सीए बन गया. और वो एकदम सिंपल, जैसे रवि सर ने बताया, many students are that very simple background, none of the family members, दूर दूर तक कोई सीए का कुछ सीवी नहीं होता है, and they become chartered accountant and they start a new generation. तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है कि उसके बाद की पीढ़ी भी सुधर गई एंड वो जो आगे बढ़ेगा, हमको हम 1% तो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, 99% उसका, बट वी आर समवेयर 1%, मी एंड रवि सर 1% तो हमें वहां पे कि उसका लाइफ, उसका करियर बनाने में और उसकी आने वाली पीढ़ी बनाने में. अगर कोई चार्टर्ड अकाउंट बन गया तो उसका बच्चा क्यों तो नहीं बनेगा, उसका बच्चा क्लर्क तो नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा. तो अभी फादर मानो फार्मर थे, बेटा फार्मर, उसका बेटा फार्मर, बट एक बेटा सीए बना, तो भी आगे वो चेन ब्रेक हो गया. Now there is new direction, so that entire generation goes into that direction, and that's what is giving us a kick. वो मजा है, वो एक जो satisfaction मिलता है ना, कि कोई बंदा जैसे मेरे पास 10 साल पहले पढ़ा है, वो आज आके मतलब पूरा शक्ल वकल सब चेंज हो गया है ना, दाढ़ी वाड़ी ना, बट जब बोलता है सर आई एम योर स्टूडेंट, कितना अच्छा लगता है. और वो काफी अच्छा एक जगह काम कर रहा है, वो अपना नाम बना के रखा है और वो काफी दूसरे स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर करता है. सो दैट्स हर्षा व्हाट ड्रॉव अस टू द टीचिंग प्रोफेशन. एंड रिमेंबर, चाइना को कितना भी हेट कर लो, बट एक चीज याद रखना जो चाइना कहता है, डोंट डू टू थिंग्स बिकॉज ऑफ मनी, डू इट बिकॉज आउट ऑफ पैशन, टू बी अ टीचर, टू बी अ सोल्जर. यस हर्षा. सर आपने तो इमोशनल कर दिया, आपकी कनेक्टिंग टुगेदर से सोल्जर के साथ टीचर्स को सेम ये करके. बिल्कुल सर, तो यहाँ से आपका पैशन निकला और इस तरीके से आप इंटीग्रेट हुए. थैंक यू सो मच सर. तो बहुत अच्छे से स्पीकर्स ने बताया अपने एग्जाम्पल्स के साथ, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, कि किस तरीके से स्किल जो एक काबिलियत है और विल जो एक इरादा है, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करता है. और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स दोनों ही स्पीकर्स ने यहाँ पर पुट किए. बिफोर वी प्रोसीड अहेड, वी वुड लाइक टू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस इफ एट ऑल. सो let us open the ground for the audience to put up their questions. So audience, over to you. You have a chat box, you can put up a question over there, and of course speakers are here to put up your answer to all your queries and questions. All right, so one such question, if I can put it. Yes, so audience, we are still waiting for your questions, but one such question which came up would like to share is about the exam postponement. जो एग्जाम पोस्टपोन हुए उसके बेस पे अगर हम पूछें कुछ, आपके यू बीइंग टीचर्स, आप सीए स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, तो जैसे कि मैंने 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स में फॉर एग्जांपल ये देखा कि उन लोग की ना एक बीएसटी की एग्जाम थी और कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गई. तो तब ऐसा देखने मिला कि पहले तो बहुत एक्साइटेड थे, करेंगे एग्जाम, बहुत मेहनत करी है, पर जब 1 महीने का बीच में गैप आ गया और फिर उनको पूछा क्या लगता है देना चाहोगे, तो दे वर लाइक नहीं मैम, अब मतलब वो स्टॉप हो गया है, वो जो एंथुसियाज्म था वो ब्रेक हो गया है. तो सीए का पोस्टपोनमेंट तो 6 months का है, दैट टू अगर 12th की बुक में इतनी मानूं तो सीए की बुक ऐसी मानूंगी मैं, टू अंडरस्टैंड द नॉलेज. तो ये 6 months का जो गैप है, सो आशीष सर एंड रवि सर प्लीज गाइड द स्टूडेंट्स कि उन्हें विल पावर की ज्यादा जरूरत है और दे हैव टेकन अप अ रूम
to create their more skills. So yes, I think, one by one, yeah. Okay. जैसे हर्षा ने बताया कि काफी सारे जो अभी सीए स्टूडेंट्स ऑडियंस में हैं, एक बिगेस्ट जो अभी अनाउंसमेंट आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज टाइप है कि मेन एग्जाम्स आर नॉट गोइंग टू बी कंडक्टेड, यू आर मच विथ नवंबर। जैसे न्यूज आया तो जो रिएक्शंस थे ना, इट वाज वेरी मिक्स्ड रिएक्शंस। मैंने तुरंत एक लाइव सेशन लिया था और टू नो दैट कि मैं कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। सो ऑल स्टूडेंट्स वेयर, इट वाज अ मिक्स्ड फीलिंग। बट अभी जैसे कृष्ण भगवान की बात चली, हमने हर्षा को कृष्णा से कंपेयर किया, तो गीता सार, गीता संदेश का एक सबसे बड़ा वो लाइन है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सबने सुना होगा। ओके, तो अभी वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सर ये क्या अच्छा हुआ, मई से नवंबर में एग्जाम शिफ्ट हो गया, शायद ये अभी पता ना चले, शायद 1 साल के बाद पता ना चले, बट एट पॉइंट ऑफ लाइफ यू अंडरस्टैंड दैट कि या इट वाज गुड। तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ये जो आपको समय मिला है सर, एक एक दिन, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है सीए सिलेबस में, और कोई आपको दे रहा है, ले भाई 3 महीने ले ले, जी ले अपने जिंदगी, तो खुश होना चाहिए। इट्स नॉट दैट अच्छा सबका हुआ ना, आप अकेले का हुआ नहीं तो क्यों परेशान हो? समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, समथिंग विच इज हैपेंड टू ऑल, नॉट जस्ट यू। एंड अगर ले तो भी क्या आप देने वाले थे ये माहौल में एग्जाम? शुड नॉट गिव नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट बी वेरी क्लियर कि आपका जो आने वाला अटेम्प्ट है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर होना चाहिए आपके रिजल्ट में। अगर आप रैंक लाना चाहते थे 1 to 50 में, तो 50 मतलब 40 to 50 की जगह 1 to 10 में आना चाहिए। आप पास होना चाहते तो आप अच्छे स्कोर से पास करो, समथिंग हैज टू बी डन। तो खास इसको टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, यू आर गिवन टाइम, यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली, बिकॉज यही होता है। और चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्जू ने कहा है, if you are depressed, you are living in past. If you are anxious, you are living in future. And if you are peaceful and happy, you are living in present. Live in present. वही चीज है सर। आगे क्या होगा भाई, क्यों चिंता कर रहा है? सर मई में एग्जाम नहीं दे पाया भाई, क्यों चिंता कर रहा है? आज का पल जी लेना, ये वेबिनार एंजॉय करना, लाइक दैट। तो आज में जियो, एवरी प्रॉब्लम इज आंसर्ड। और अगर आगे पीछे जाए तो पास्ट में कोई पछतावे होते ही है और फ्यूचर की कोई चिंता होती है, बट उससे क्या फायदा? नो। और सीए लोग फायदे वाली बात ही करते हैं। सीए लोग कभी भी 1 रुपया भी, 1 मिनट का टाइम भी ऐसी जगह नहीं देते जहां पे घाटा हो। तो वही ना, हम तो ये समझाते कि भाई तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हम तो बहुत स्मार्ट है, हम दुनिया को एडवाइस देने वाले, तो वो पहले हम भी ले ले एडवाइस कि भाई हम तो प्रेजेंट में जी रहे हैं, और आज का दिन मेरा बेस्ट हो जाएगा तो मेरा आज का दिन कल के लिए यस्टरडे बन जाएगा, तो मुझे कोई पछतावा नहीं। और मैं कल भी ऐसा करूं तो मेरा फ्यूचर भी अच्छा होगा। मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। I will not take much time in this, but अच्छा है, आप इसको पूरी तरह से एंजॉय कर लो एंड कम विथ बेटर रिजल्ट। मतलब मैं एक ही चीज कहूंगा, जो नवंबर में फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनकी कंपैरिजन में जो मई वाले स्टूडेंट जिसका कंपलसरी शिफ्ट हो गया एग्जाम, अच्छे मार्क आने चाहिए, बिकॉज आपके पास 6 महीने ज्यादा है, तो कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। मस्ट बी मेकिंग सम डिफरेंस, बिकॉज नवंबर स्टूडेंट्स के लिए वही टाइम है जो नॉर्मली होता है। आपके पास 6 months एक्स्ट्रा है, सो व्हाट इज द बेनिफिट? आस्क योरसेल्फ, एंड बेनिफिट मिलना ही चाहिए। सो दैट इज माय मैसेज अबाउट शिफ्टिंग ऑफ एग्जाम फ्रॉम मई टू नवंबर। राइट, सो दिस इज गिल्ट फ्री बेनिफिट। एंड बहुत अच्छा सर ने बताया, अगर पोस्टपोन हुआ है तो जी ले अपनी जिंदगी is the word for all the students for this postponement. Yes, Ravi sir, please put a light on this. And also there is one question, add-on question saying attitude to be CA. So sir, ये दोनों question I suppose complement कर रहे हैं about the postponement and attitude to be CA as asked by from our audience. So Ravi sir, please come forward and address the concern. So जैसे आशीष सर ने कहा, ओके, वेरी करेक्ट, दैट आप इस टाइम को अपने आप को और तैयार करने में और एनहांस करने में यूज करें। एंड मैं एक और चीज कहूंगा कि हम सब जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल कोर्स है, प्रोफेशनल करियर कोर्स है। जब हम 1 साल में इंटरमीडिएट की तैयारी करते हैं तो शायद कई बार बच्चे सिर्फ कोर्स को याद करने में, नोट्स बनाने में ही रह जाते हैं। तो क्यों ना आप इस एक्स्ट्रा टाइम को प्रैक्टिकली उस कोर्स को समझने में, उस कोर्स को डेप्थ में जाने में यूज करें, जिसका फायदा आप लाइफ टाइम ले सकते हैं। सीए तो आप बन जाओगे,
पर जो आप अपनी स्किल्स डेवलप करोगे उस चीज को बार बार रिपीट करने में, बिकॉज स्किल कब डेवलप होती है, जब आप एक काम को बार बार लगातार करते हैं तो अपने आप आपकी स्किल उसमें डेवलप होती है। तो मैं ये कहूंगा कि स्टूडेंट्स, आप सब इस टाइम को, जब आपको बाहर कहीं ज्यादा भटकने को नहीं मिलने वाला, आपके घर पे आके कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, जो हम एक ड्रीम सिचुएशन या ड्रीम एनवायरनमेंट सोचते हैं पढ़ाई के लिए, मुझे लगता है कि ये समय हमारे लिए वो ड्रीम टाइम है स्टडीज के लिए। आप सबका घर अपने आप में एक आइसोलेटेड लाइब्रेरी बन चुकी है। सिर्फ आप अपने सोशल मीडिया और ये न्यूज मीडिया, इस दोनों से अगर दूर रहते हैं और हर्षा के जो एनकरेजिंग सेमिनार्स है तो उनको अटेंड करते हैं, ओके, तो आप पॉजिटिवली आगे बढ़ें और थोड़े कभी बाहर आउटिंग में जाते हैं तो फ्रेश एयर में जाइए, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप रखिए। और आपको एक चीज बता दूं कि इम्यूनिटी पावर हैज वेरी मच टू डू विथ आवर साइकोलॉजी आल्सो। मेडिकल ने ये प्रूफ किया है कि जो व्यक्ति बीमार भी है पर अगर उसके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो उसके बॉडी के जो एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं वो बॉडी को डिफेंसिव पावर डेवलप करके देते हैं। सो आप सब इस एनवायरनमेंट में जितने अपने स्टडीज को लेकर, अपने करियर को लेकर पॉजिटिव रहेंगे, उतने ही आप और स्ट्रांग होंगे मेंटली भी और फिजिकली भी। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि आपके ऊपर अभी इस एग्जाम का बर्डन नहीं है। एग्जाम तो हमारे लिए एक डेडलाइन है, एक लास्ट पॉइंट है, पर हमारी जो जर्नी है लर्निंग की, वो जर्नी हमको और बेहतरीन तरीके से कवर अप करने का मौका मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि सीए का सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता है, राइट? देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू मोर, समथिंग टू इंप्रूव, समथिंग टू रिवाइज। सो आप इस टाइम को यूज करिए टू नो समथिंग मोर, टू नो इट लॉजिकली। जो आपने पढ़ा उसके फंडामेंटल्स को ढूंढिए कि ऐसा क्यों है, ये कहाँ रियल लाइफ में अप्लाई होता है, उसकी रियल लाइफ केस स्टडीज को सर्च करिए, राइट? ताकि आप अपने एग्जाम्स को सिर्फ एकेडमिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी हैंडल कर सके इवन आफ्टर यू क्वालिफाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो आई थिंक सो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जो हम कहते हैं कि ये एक हमारे लिए वरदान है, हमारा फाउंडेशन और मजबूत करने का मौका है। बिकॉज एक बार सीए बन जाएंगे उसके बाद अपने फाउंडेशन को वापस मजबूत करने का मौका नहीं मिलता। पढ़ाई के समय अपने आप को मजबूत बनाने का जो टाइम मिलता है ना, ये टाइम बाद में मिलना मुश्किल है। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी वेरी पॉजिटिवली। और यही थॉट प्रोसेस, सोचने का जो तरीका है, यही जरूरत है एज अ स्किल टू बिकम अ सीए। सीए बनने के लिए आपका मैथ्स की पावरफुल हो जरूरी नहीं है, आपका इंग्लिश पावरफुल हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को एक चीज बताऊं, सीए इंस्टीट्यूट अपने पेपर्स चेकिंग के दौरान अगर बच्चों के स्पेलिंग में मिस्टेक्स हैं माफ कर देती है, ग्रामर रॉन्ग है इग्नोर कर देती है। उन्हें बस ये चाहिए कि बच्चे का कंटेंट सही होना चाहिए, उसका लॉजिक सही होना चाहिए। अगर स्टेप सही है, कहीं कैलकुलेशन एरर हो गया तो भी आपको अपने फॉर्मूला कर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्किल सीए बनने के लिए सिर्फ इंग्लिश बिल्कुल जरूरी नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग, ग्रामर या हैंडराइटिंग बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं आपको इंडिया के टॉप रैंकर्स के जो सर्टिफाइड कॉपीज और आंसर शीट्स मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं, आपको दिखाऊंगा तब इनसे तो लगता है कोई एवरेज बच्चा है, कैसा लिखा है सर हैंडराइटिंग, तो देखो कितना काटा पीटी किया है, राइट? स्कूलों में हैंडराइटिंग की जरूरत पड़ती है, दिखावे की जरूरत पड़ती है। सीए में ओके कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ, ओके? तो अपनी अक्ल को डेवलप करो। और ये ध्यान रखना, एग्जाम में आप किताबों को लेकर नहीं जाते हैं, एग्जाम में दिमाग लेकर जाते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, दिमाग को डेवलप करो, किताबों को सिर्फ तैयार मत करो। एग्जाम में से एग्जाम हॉल के बाद किताबें छुट्टी और आप अकेले अंदर जाते हो और आपने साल में सिर्फ नोट्स तैयार किए होते हैं, सिर्फ नोट्स पढ़े होते हैं, ओके? अगर दिमाग को डेवलप नहीं किया तब नर्वसनेस आती है कि मेरी किताब तो बाहर छूट रही है और मैं अकेला अंदर जा रहा हूँ। पर जब मैं चलता फिरता सीए हूँ, मैं जहां खड़ा हूँ वहीं से बोलना चालू कर दूंगा, ओके? जहां खड़ा हूँ मुझे किताबों के ऊपर भरोसे रखने की जरूरत नहीं, एक बार किताबों को पढ़ लिया, दिमाग में डाल लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, ओके? चलता फिरता सीए, मैं कहता चलता फिरता सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ ना, तो चलता फिरता सीए फाउंडेशन स्टूडेंट नहीं हूँ, चलता फिरता सीए इंटरमीडिएट हूँ, चलता फिरता सीए हूँ, राइट? तो वो एटीट्यूड डेवलप करो कि जो पढ़ा उसको दिमाग में उतार लो, ओके? डीएनए में उतार लो। आपका डीएनए जो है ना, वो डीएनए की जगह सीए हो जाना चाहिए। अब तो जब ब्लड टेस्ट लेंगे तो पता चल जाएगा भाई ये तो सीए है। Right. Thank you so much, Ravi sir. I'm sure the students have got inspired with all your wonderful guidance and of course the combination of skill and willpower आप दोनों में जो है
प्लस आपने इतने अच्छे से जिस तरीके से अपने वर्ड्स में अपने इस चीज को टीचिंग्स को पुट किया है फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर आवर ऑडियंस. So before we proceed ahead, let me just check the chat box if there is any more concern. Okay, I guess already one of the audience has put up के English के बारे में, और सर ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि English आना जरूरी है so that अपने words put कर सको, but grammar के concern पे कई बार वो आपको ignore कर देते हैं और आपकी content सही है वो देख कर check कर लेते हैं. So I suppose your concern and query put up in the chat box is sorted. And now we are going to proceed ahead with rapid fire round, which is going to add the spice to the entire conversation we have. So before we proceed ahead to rapid fire round, audience, there is one poll for you. इतना सब सुन के माना कि skill and will, काबिलियत and इरादा दोनों बहुत जरूरी है, पर if you are given the weightage, if you have to give weightage to either of them, so let me see after this conversation, what would you like to give? So here is the poll for the audience. दोनों बहुत जरूरी है as far as speakers, लेकिन अगर एक को weightage देना हो, so किसको आप weightage देंगे? So yes, speakers, meanwhile be ready with the rapid fire round. Let me tell you, this rapid fire round has to be really rapid, spontaneous and interesting. And audience, I would like to also tell you, हमारे rapid fire round के बाद एक poll आने वाला है, where you have to poll that among the two speakers, whom did you find more spontaneous and interesting in their answers? So speakers, we are waiting for that spice of the conversation, and audience, be ready to find out कौन spontaneous and interesting you find according to you. Of course, our speakers are masters in their own fields. So I suppose I'll just wait for a few more seconds for everyone to answer, though I suppose 75 to 80% of the audience have answered. Waiting for still more left audience. With the 10 more seconds, I suppose would be sufficient for all of you leftovers to pull up your answer. All right, so last 5 counts, 5, 4, 3, 2, and 1. All right, so I'll end the poll and I'll launch the results. So अगर हमारे audience को एक चीज choose करने मिले, तो 25% of the audience have polled for skill, कि भाई skill जरूरी है, and at the same time 76% of the audience have voted for will, कि यार will चाहिए, skill develop हो जाएंगे. So audience, students, viewers, best wishes with your capability of skill and will, इरादा and काबिलियत दोनों के combination में wish you are going to have a good success ratios in your step-by-step life as you proceed ahead. So I'll stop the results here. Harsha, special resolution pass हो गया. I would like to add for a second. Yeah. Let's invent a new word today itself. If both are necessary, skill and will, can't it be squill? Skill, will, squill. So आज बात कोई पूछे तो क्या जरूरी है, बोले squill जरूरी है. ये कहाँ से नया word आया? It's a word of the year 2020. Squill. Skill plus will equal to squill. Right. Ashish sir, I'm sure it's going to take a good trend range. जैसे वो selfie का एक जमाना है ना, वैसे squill का जमाना आने वाला है with skill and willpower. Yes, Ashish sir, thank you for that new invention word. So here we begin with the rapid fire round. Speakers, you really need to add rapid and interest to the entire questions for us to learn more about you. So here first we'll proceed ahead with CA Ravi sir. All right, sir, are you ready? Yes. Thank you so much, sir. Here we begin. So first one, what is one thing you would put in your bucket list which you want to do next? Going for a trip. Okay. Going for a trip. Sir, कहाँ जाना चाहते हैं? To any hill station. To an hill station. Wow. Sir, मैं भी वो नज़ारे देखने के लिए तरस रही हूँ. Anyways, the second one, GST or no GST? Lesser GST. Lesser GST. Thank you. The third one significant feature which distinguishes your CA star students with your other students of your class.
The willpower of our CS star students. Wow. The next one. One thing that annoys you the most. And anyone telling lie, झूठ बोलना. True. So yes, always speak truth. Bhale saza mile, but speak truth. Next one. Best childhood memory. Best childhood memories: cycling, okay, with the friends in the evening, playing crickets in the evening, and video games in the afternoon. I used to play a lot in my childhood. Wow. Because I don't used to have any tuitions. Right. Thank you, sir. The next one. If you can talk and sleep, अगर आप नींद में बात करें, तो what would you speak? मैं क्या कहूँगा? Okay, I think so. मैं income tax के sections कहना चालू कर दूँगा. I thought so. This answer was expected, sir. The next one. After COVID ends, what will be the first thing you'll do, which you're not able to do right now? I will meet with my friends. You'll meet with your friends. Actually meet करेंगे virtual पे. I'm sure everyone has enjoyed their journey virtual meeting. The next one of your favorite amendment, because CA में बहुत सारे taxations में amendments आते रहते हैं. So one of your favorite amendment. There are lots of amendments, okay, but I think so the amendment जहाँ पे capital assets में land और building के 3 years के period को 2 years कर दिया गया, okay, and tax rates को कुछ rationalize किया गया. So those were good amendments. Right. So देखिए आपके लिए sir is happy कि आप लोग के लिए tax rationalize कर दिए गए. Proceeding ahead, what is better, certificate or experience? Experience. And the last one step of your guidance to students who have high skill with a combination of low will. Develop a good environment, be with positive and energetic people, okay, because जैसा संग वैसा रंग, okay, रंग की कमी है तो संग ठीक करो, रंग अपने आप चल जाएगा. Wow, sir. संग और रंग के बारे में क्या बोले? Wonderful, sir. It was awesome rapid fire rounds with you, with your spontaneous and of course interesting answers. Let us now proceed ahead with CA Ashish, sir. Yes. I'm ready. Yes, sir. So here we begin. So audience, be ready. You're going to poll for the most spontaneous and interesting answer. So here we begin, Ashish, sir. The first one, GST or no GST? Will be GST with practicality. जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो खराब हालत पड़ चुकी है, 12-12 बजे तक बैठे रहते हैं, तो वो सारे प्रोविजंस चेंज कर दे. अदरवाइज जीएसटी को क्या आपने कितने सारे सीए की दिल की बात बोल दी. The second one, describe yourself in 3 words. I am me, me and myself. Wow, I, me and myself. Out of so many amendments made, one such amendment which you did not like. That GST returns, it was initially taken per month, that I didn't like, because that makes no sense to file return every month, looking at India's people's habit, business people habits, and chartered accountants, number of chartered accountants, जो demand supply वो match नहीं होगा, that I didn't like. Monthly returns. Right. Perfect, sir. Fourth one of your weird quirks बोले तो unexpected trait in you, and कभी वो एकदम से आ जाता है. So one of your weird feature. I cannot stop my laugh. Sometimes it's very embarrassing. मतलब कोई एकदम बहुत serious माहौल है, सब sad माहौल है, I just laugh it out. So that's the weird thing about me. I cannot stop my laughing. So honest, यार जो मन में है निकालो बाहर. Wow. Next one. Both of you, you and your wife, both of you are director at your workplace. We would like to know who directs the home. Of course, is it to be answered, or it's the universal truth that always female will nothing to answer? All right. You know the answer. You are asking me. Taking my confirmation. All right. Thank you. The next one. You are doing, sir, you are doing great in Surat right now. मान लीजिए इंडिया लेवल पे आप पहचाने जा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड पहचाने जा रहे हैं, तो सर व्हाट वुड यू डू विद योर 15 मिनट्स फेम? वो फेम के साथ जो आपको मिला है, बिकॉज आप वर्ल्ड वाइड पहचाने जा रहे हैं, 15 मिनट्स फेम में आप क्या करना चाहेंगे? In my 15 minutes fame, it will be like जो नायक में अनिल कपूर वन डे सीएम बना था, तो अगर मेरे पास 15 मिनट्स मिले तो I would like to do the like things which otherwise is not possible, कि जो लोगों को जो प्रॉब्लम्स है, शायद मेरे पास एक सुपर पावर आ जाए कि आई जस्ट जैसे मूवी में बताते ना, ऐसे में हाथ करो सारा एब्जॉर्ब हो जाए
मेरे पास आ जाए, and people just become happy. So if I am given like that, I'm something like that, a fantasy kind of thing. So I will just wipe out all the sorrows, all the hatredness, all the enmity, the people like bad virtues. So मैं absorb कर लूँगा and make the world happier. Wow, what a good thought, sir. Sir, Krishna new edition बन के आप आने वाले हैं. अरे The next one thing you are missing in COVID. I am missing going out with my daughter because I used to do it every day, and अभी जैसे कोविड खत्म होगा मैं एक हफ्ता उसके साथ बाहर चला जाऊंगा. Me and my daughter, no one else. Oh, wow. In fact, so cute. Next, favorite movie quote. Favorite movie quote. अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है. In last everything is good. अगर वो अच्छा नहीं है तो it's not end because picture अभी बाकी है मेरे को. Right. So CA students, you've got one more inspiration message over here. The next one, sir. What do you think is more challenging? Preparation for CA or career after CA? Both equally, but career after CA is the thing that there is no syllabus. Right. You are doing CA, syllabus है. एक बार CA बन गए, no limit is there, syllabus नहीं है. आप अगर जितना skill develop किया है, learn करे, वही से answer आएगा. So the life after, it's just a beginning, warm up. Real game will start once you get that tag chartered accountancy. Then field is open. तो कोई syllabus नहीं है. आपका दिमाग ही आपका सिलेबस में से उसमें से ही बाहर निकालना पड़ेगा. तो रियल चैलेंज इज आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई थिंक वीके सर विल एग्री विथ मी. Yes, so students preparation for CA is quite easy. Come on, आगे चल के तो बिना सिलेबस के एग्जाम देना है. So proceeding ahead with the last question, sir. One step of your guidance to the student with high will but low skill. High will and low skill, so you are not having any big problem. जैसे अभी ऑडियंस बोल हुआ कि will है तो काफी कुछ काम हो जाएगा. जब स्किल है तो स्किल को नर्चर करे, स्किल को डेवलप करे by observation, by having a personal target. Suppose someone is not good at English, just have a personal target. Daily improve your English, daily add your vocab and things like that. Because कुछ साल पहले एक सर्वे किया गया था जिसमें top CEOs of Indian companies met, their HR met, and they were discussing about which kind of people do we want. HR देख रहा है कि कौन से टाइप के लोग हमको चाहिए. तो 3 दिन मीटिंग चला, उसका एनालिसिस या कंक्लूजन ऐसा था. एक समय था जब नॉलेज वाले लोगों का डिमांड था. आज समय ऐसा है कि स्किल वाले लोगों का डिमांड है. बट फ्यूचर विल बी द पर्सन हु इज हैविंग अ कैरेक्टर. रवि सर ने भी आगे बताया कि अगर नीयत ठीक है तो बंदा आगे जाएगा. हाँ, तो वही चीज है कि भाई नॉलेज आउटडेटेड, स्किल इन, बट फ्यूचर इज अबाउट योर कैरेक्टर. सो बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. जब आप मार्केट में आएंगे पीपल विल बी वेटिंग फॉर यू बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट सक्सेस इज लाइक अ पिरामिड. देयर इज नो कंपटीशन एट टॉप लेवल. बॉटम लेवल पर रहेंगे कंपटीशन, बट रीच एट टॉप, नो कंपटीशन. Right. So thank you so much, sir. Here we complete with our rapid fire round, and both the speakers have been awesome with their answer. Of course, with their answer as well as the teachings and the inspiration message they have given through their answers. Thank you so much for the speakers. Before we proceed ahead, I'll launch a poll for the students to look up their voting for being most spontaneous and interesting. So here I go. Yes. So according to you, whom among the speakers was most spontaneous and interesting? हमारी हार्ट बीट्स बढ़ रही है. मेरी भी. Right. जैसे मिस्टर वर्ल्ड का रिजल्ट बाहर आने वाला ऐसा लग रहा है. और वो स्टूडेंट्स देने वाले हैं, वो भी वो सोचो. Students are best judges, what we believe. Right. So I'm waiting for others to put in their answers. Yes, so as the time, I suppose 10 more seconds and then we'll end up the poll. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, Here I would 4, like to say
रवि सर और आशीष सर के बीच में रह के ये आइडिया मुझे लगा एसेट और लाइबिलिटी दिमाग में घूम रही है, और अगर स्किल और विल को मैं कंक्लूड करूं तो स्किल विदाउट विल इज अ लाइबिलिटी, बट स्किल विद विल इज एन एसेट. Right. So thank you so much, sir. Over to Ravi sir, Ashish sir, Balkishan sir. Please proceed ahead with your views and concerns about the session. Please go ahead. So first of all, again, thanks, Harsha, okay, for being so spontaneous, so good in your hosting and conducting the event. Special thanks to our very loving Balkishan ji Agrawal. Okay, and the session was really excellent. And Balkishan sir always has been very, very positive, very encouraging, very helpful for students. Even in this pandemic time, let me share with you that CA Balkishan Agrawal sir ने बहुत सारे CA students को ground level पे help किया है, और इवन कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी हेल्प किया है. सो थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू हर्षा फॉर कंडक्टिंग सच अ वंडरफुल सेशन. थैंक यू रवि सर. बहुत अच्छे से आप अपना जो CA स्टार्स का काम कर रहे हैं. I mean, मुझे बीइंग अ टीचर प्लस हम सभी को एक इंस्पिरेशन मिला है, जो आपका एक मोटिवेशन है, और उन बच्चों की दुआएं जो आपको इस तरीके, जिनको आप इस तरीके से हेल्प कर रहे हो, इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे. सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एंड आई गेस बहुत सारी चीजें से मैं इंस्पायर भी हो रही हूँ आपकी बुक से. आपकी जिस तरीके से, आई सपोज आपकी बुक भी आने वाली है टैक्समैन की, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे से वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हो रही है. So thank you so much. Thank you, Harsha. Thank you, Balkishan ji. From you. And special thanks to Ashish also for having such a good conversation with us. Okay, Ashish के होने से और बहुत मजा आया. Yes, it was always pleasure to be on such kind of platform, because in past also whenever we take this such kind of seminar regarding CA student, it's always a fun and always a lifelong. Right. Thank you, Ravi sir. Thank you, Ashish sir. Thank you very much, Harsha and Ravi sir and Ashish sir. And the session was amazing, very, very energetic, very, very knowledgeable. और रवि सर ने जैसा बताया कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, और CA स्टार के माध्यम से, मीडियम से जो CA बनना चाहते हैं, थोड़ा सा भी उनमें वो है, वो बना रहे हैं. तो दिस इज वेरी, वेरी गुड इनिशिएटिव. और इस इनिशिएटिव के बारे में मैंने पूना में, मुंबई में और बहुत सी सुना है कि आपके सूरत से ये इनिशिएशन लिया जा रहा है. तो आई फील ऑल्सो प्राउड. और महाभारत में तो एक द्रोणाचार्य थे, और हमारे सूरत में 2 द्रोणाचार्य तो हमारे सामने बैठे हैं. और द्रोणाचार्य ने तो एक अर्जुन बनाया था. हमारे ये 2 द्रोणाचार्य और भी जो द्रोणाचार्य है, सूरत में इतने अर्जुन बना रहे, इतने CA बना रहे हैं, जो कि हमारे सूरत का और हमारे कंट्री का नाम आगे ले जा रहे हैं. तो हमारा जो सूरत का प्राइड है, और जो सूरत का नाम आज इंडिया में नंबर 1 आया है हमारे CA एजुकेशन के बारे में, तो उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो हमारे द्रोणाचार्य रवि सर है, तो यहाँ पे आशीष सर है, उनको जाता है. So we are very thankful on behalf of members, students and our firm. So thank you very much. और both speakers are always ready to support the students. विश्व पितामह बन के हैं हमारे CA प्रोफेशन के. यहाँ पे पिछले 6-8 सालों से लगातार CA प्रोफेशन को, CA ब्रांच को, वेस्ट आप सबको पता हो तो बालकिशन जी WIC के पास्ट वाइस चेयरमैन रहे हैं, और अभी भी WIC में काफी एक्टिव मेंबर हैं. और स्टूडेंट्स और सभी प्रोफेशनल्स के लिए, सोसाइटी के लिए भी, नॉट ओनली सिर्फ प्रोफेशन के लिए नहीं, इन्होंने वोटिंग अवेयरनेस कैंपेन, ओके, काफी जगहों पे ऑर्गन डोनेशन के कैंपेन में, अभी पैंडेमिक में जो श्रमिक ट्रेन होती है, लेबर ट्रेन में लेबर लोग को है ना पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है. ओके, सल्यूट टू बालकिशन जी. जब सब लोग डर के घर के अंदर बैठे थे, तब आप समाज सेवा में और सब जो तकलीफ में थे लोगों को फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने में, ट्रेनों का अरेंजमेंट कराने में, ग्राउंड लेवल पे इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत वर्क किया है. सो ही इज अ पर्सन जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं. आई अप्रिशिएट बालकिशन जी फॉर दिस. I would like to add what Ravi sir said, that something which I learned from BK sir. Sir Balkishan ji को short form में BK sir के नाम से पूरे इंडिया में फेमस है, WRC में फेमस है. तो he's always smiling, always calm and composed. If you don't know, he wakes up at I think 5, sir. I am right? You wake up at 5 or 4? Oh, now 4. Now 4. So listen, everyone.
अगर बड़ा होके बीके सर जैसा बनना है तो 4 बजे उठना चालू कर देना. He is very when I talk with him, when I see him, मैंने उनके फेस पे स्माइल के अलावा कुछ भी नहीं देखा. तो सर very pleasant personality, and the way Ravi sir is giving the results and the way he makes Surat always shine at India, credit goes to him only. And we hope that कि और मतलब पूरा है ना सूरत CA हब बन जाए, लोग दुनिया के, इंडिया के नहीं, दुनिया के कोने से सूरत में ही आए CA बनने. ऐसा हम एक विजन रख के आगे काम करेंगे. एंड हर्षा, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट सेमिनार यू आर होस्टिंग एंड आई एम स्पीकर. एज एन ऑडियंस मैंने आपको सुना है, एज अ स्पीकर वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म राइट नाउ, बट आई एम वेटिंग कि नेक्स्ट टाइम कब आप करिए. रियली इट वाज एंजॉयबल, रियली इट इज सो प्लेजेंट, सो लाइव, सो एक्टिव. मतलब लग नहीं रहा, अभी लग रहा है कि एकदम सुबह हो गए, 6 बजे का माहौल है, भले ही शाम का टाइम है, बट इट्स वेरी रिफ्रेशिंग. काफी मजा आया. थैंक्स टू ऑल लवली ऑडियंस के जो कुछ समय से हमारे साथ जुड़े हुए. कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छा लाइफ मैसेज मिला होगा. इम्प्लीमेंट इट, बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. होप दैट कि हम आपके साथ मिलके ये टाइप के वेबिनार्स करें. जब कोविड-19 पार्ट 2 कुछ आए फ्यूचर में, तब ऐसे ही कुछ करेंगे. बट जस्ट टेक द मैसेज फ्रॉम द सेमिनार कि भाई आपका जो ये करियर चल रहा है, हम जो 4 लोग हैं अभी जो सेशन को होस्ट कर रहे हैं या एंकरिंग कर रहे हैं, हमारा जो करियर टाइम है इट्स ओवर, मेकिंग करियर टाइम इज ओवर. तो भगवान सबको एक बार 5 साल देगा टू मेक करियर. इफ यू वर्क इन दिस, आगे के 50 इयर्स आपके हाथ में. 550, वेरी सिंपल कंपैरिजन. यू हैव टू वर्क, बट कहां पे? 5 साल या 50 साल? बेटर इज 5 years. गिव योर बेस्ट इन दिस 5 years. You will get best for the balance 50 years. So that's the main line, punch line of the today's seminar. 550 रूल को फॉलो करो. आपका 5 साल अगर आपने संभाल लिया, दुनिया अच्छी लगेगी, लाइफ अच्छा लगेगा. और ऐसे बहुत सारे रवि सर, बीके सर, हर्षा या मेरे जैसे आप उभर के आएंगे एंड काफी लोगों का और भला करेंगे. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. लव यू ऑल. Thank you. And one more announcement from my side. And हर्षा, दोनों स्पीकर्स जो है हमारे इतने वो है कि इनके साथ आप सेपरेट एक कन्वर्सेशन रखिएगा. देन दिस विल बी द जस्टिस टू द स्टूडेंट्स. और कल टुमारो वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एट 7 PM, जिसमें हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, एक बहुत अच्छे सिंगर है, एक फ्लूट बजाते हैं, एक जो है उसमें सिंगर है, फ्लूट है, कॉमेडी है और पोएट्री है. तो ये कोविड में जो थोड़ा सा स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कम हो सके, उसके रिलेटेड वी हैव केप्ट दिस एंटरटेनिंग प्रोग्राम. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट हियर, आप ज्वाइन कीजिए. दिस इज वेरी नाइस प्रोग्राम. या एंड थैंक यू वेरी मच टू हर्षा. हर्षा ने बहुत मेहनत की है इस सेशन के लिए. सो थैंक यू वेरी मच हर्षा ऑल्सो. एंड हैंड ओवर टू हर्षा. ये 1.5 घंटे का वेबिनार था, बट हर्षा इज वर्किंग सिंस आई थिंक 48 hours फॉर दिस. so thanks for your very good coordination. and दोनों से, मेरे से और रवि सर से काफी इंटरेक्शन किया. एंड बिल्कुल, हर्षा ने काफी मेहनत की. और बालकिशन जी भी, आई वंडर कि बालकिशन जी आप अपने हेल्थ, अपनी फैमिली, अपना प्रोफेशन, उसके बाद आप इतना सोशली एक्टिव प्रोफेशन की इतनी सर्विस, हाउ यू मैनेज? आपके पास 24 आवर्स है कि 48 आवर्स? हम भी नहीं समझ पाते सर इसके लिए सेशन रखा जाए. हाँ, मैं तो डेफिनेटली इसके लिए करना चाहिए अब तो. और सर मैं ये बता दूं, 24 आवर्स ही है. और उसके बाद भी आप देखेंगे कि हर्षा भी है या आशीष भी है या आप भी है, आई एम ऑलवेज फ्री. आप देखो मैं सारे सेशन अटेंड करता हूँ, आपके फोन्स भी आएंगे तो मैं इमीडिएटली रेस्पॉन्स भी करता हूँ. तो ये मैं इसमें ये मानता हूँ कि जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो मैं उठकर एक जो माइंड मेकअप हो जाता है, एक फिजिकली मेंटली आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो. जितने भी काम आप उस दिन करने वाले हो वो आप एक बार फाइनल कर लेते हो, तो फिर वो जस्ट आपको रेप्लिकेट करने होते हैं. माइंड में एक बार सेट है चीजें तो बाहर ऑटोमेटिकली होती है. तो अल्टीमेटली वही है सब जो है कि माइंड मेकअप का है. सो दिस इज वेरी एसेंशियल कि अगर थोड़ा हम जल्दी उठते हैं तो इट्स डिफरेंस very much in our life. So this is the guru mantra for my life. Yes, Asha. Right.
और बिल्कुल सही बताया बालकृष्ण जी ने कि इतना सब करके भी फ्री है, तो जैसे जब भी बालकृष्ण जी को फोन करना होता है अवेलेबल है। कल मैंने रवि सर से बात करी थी, तो एकदम खुले आसमान में नेचर के नीचे स्पेशली वो देखने के लिए वीडियो कॉल किया था कि क्या ग्रीनरी में वो घूम रहे थे। सिमिलरली जब मैंने आशीष जी को पूछा कि आप कब फ्री होंगे, तो एट योर कन्वीनियंट मैम, तो ये सब देख के लगा है यार इतना सब करके सब कुछ अवेलेबल है, तो बहुत अच्छी चीज है। और बिल्कुल आई सपोज इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे स्टूडेंट्स व्यूअर सब से सीखेंगे, सबको सिखाएंगे और मिलजुल के आगे कंक्लूड करेंगे हमारा एक न्यू वर्ड स्किल विल, सो मेक इट एन एसेट एंड ऑफ कोर्स नेवर अ लायबिलिटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, Balkishan ji. Thank you, Harsha. Okay, thank you, Ashish. Thank you. Thank So you. let's. Yes. Words? Yeah, thank you very much, Harsha and Ravi sir and Ashish sir. And session was amazing, very energetic, very knowledgeable. और रवि सर ने जैसा बताया कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, और सीए स्टार के माध्यम से, मीडियम से जो सीए बनना चाहते हैं, थोड़ा सा भी उनमें वो है, वो बना रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव। और इस इनिशिएटिव के बारे में मैंने पूना में, मुंबई में और बहुत सी सुना है कि आपके सूरत से ये इनिशिएशन लिया जा रहा है, तो आई फील ऑल्सो प्राउड। और महाभारत में तो एक द्रोणाचार्य थे और हमारे सूरत में 2 द्रोणाचार्य तो हमारे सामने बैठे हैं, और द्रोणाचार्य ने तो एक अर्जुन बनाया था। हमारे ये 2 द्रोणाचार्य और भी जो द्रोणाचार्य है सूरत में इतने अर्जुन बना रहे, इतने सीए बना रहे हैं जो कि हमारे सूरत का और हमारे कंट्री का नाम आगे ले जा रहे हैं। तो हमारा जो सूरत का प्राइड है और जो सूरत का नाम आज इंडिया में नंबर 1 आया है हमारे सीए एजुकेशन के बारे में, तो उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो हमारे द्रोणाचार्य रवि सर है, तो यहाँ पे आशीष सर है, उनको जाता है। So we are very thankful on behalf of members, students and our firm. So thank you very much. और both speakers are always ready to support the students. विश्व पितामह बन के है हमारे सीए प्रोफेशन के यहाँ पे पिछले 6-8 सालों से लगातार सीए प्रोफेशन को, सीए ब्रांच को वेस्ट, आप सबको पता हो तो बालकृष्ण जी WIC के पास्ट वाइस चेयरमैन रहे हैं और अभी भी WIC में काफी एक्टिव मेंबर हैं, और स्टूडेंट्स और सभी प्रोफेशनल्स के लिए, सोसाइटी के लिए भी, नॉट ओनली सच सिर्फ प्रोफेशन के लिए नहीं, इन्होंने वोटिंग अवेयरनेस कैंपेन, काफी जगहों पे ऑर्गन डोनेशन की कैंपेन में, अभी पैंडेमिक में जो श्रमिक ट्रेन होती है, लेबर ट्रेन में लेबर लोग को है ना पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सल्यूट टू बालकृष्ण जी। जब सब लोग डर के घर के अंदर बैठे थे तब आप समाज सेवा में और सब जो तकलीफ में थे लोगों को फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने में, ट्रेनों का अरेंजमेंट कराने में, ग्राउंड लेवल पे इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत वर्क किया है। सो ही इज अ पर्सन जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। आई अप्रिशिएट Balkishan ji for this. I would like to add what Ravi sir said, that something which I learned from BK sir. Sir Balkishan ji को short form में BK sir के नाम से पूरे इंडिया में फेमस है, WRC में फेमस है। तो he is always smiling, always calm and composed. If you don't know, he wakes up at I think 5, sir. I am right? You wake up at 5 or 4? Oh, now 4. Now 4. So listen, everyone. अगर बड़ा होके बीके सर जैसा बनना है तो 4 बजे उठना चालू कर देना। He is very when I talk with him, when I see him, मैंने उनके फेस पे स्माइल के अलावा कुछ भी नहीं देखा। तो सर very pleasant personality, and the way Ravi sir is giving the results and the way he makes Surat always shine at India, credit goes to him only, and we hope that कि और मतलब पूरा है ना सूरत सीए हब बन जाए, लोग दुनिया के, इंडिया के नहीं, दुनिया के कोने से सूरत में ही आए सीए बनने, ऐसा हम एक विजन रख के आगे काम करेंगे। एंड हर्षा, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट सेमिनार यू आर होस्टिंग एंड आई एम स्पीकर। एज एन ऑडियंस मैंने आपको सुना है, एज अ स्पीकर वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म राइट नाउ, बट आई एम वेटिंग कि नेक्स्ट टाइम कब आप करिए। रियली इट वाज एंजॉयबल, रियली इट इज सो प्लेजेंट, सो लाइव, सो एक्टिव। मतलब लग नहीं रहा, अभी लग रहा है कि एकदम सुबह हो गए, 6 बजे का माहौल है, भले ही शाम का टाइम है, बट इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। काफी मजा आया। थैंक्स टू ऑल लवली ऑडियंस के जो कुछ समय से हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ ना कुछ आपको बहुत अच्छा लाइफ मैसेज मिला होगा। इम्प्लीमेंट इट, बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। होप दैट कि हम आपके साथ मिलके ये टाइप के वेबिनार्स करें। जब कोविड-19 पार्ट 2 कुछ आए फ्यूचर में, तब ऐसे ही कुछ करेंगे।
बट जस्ट टेक द मैसेज फ्रॉम द सेमिनार कि भाई आपका जो ये करियर चल रहा है, हम जो 4 लोग हैं अभी जो सेशन को होस्ट कर रहे हैं या एंकरिंग कर रहे हैं, हमारा जो करियर टाइम है इट्स ओवर, मेकिंग करियर टाइम इज ओवर। तो भगवान सबको एक बार 5 साल देगा टू मेक करियर। इफ यू वर्क इन दिस, आगे के 50 इयर्स आपके हाथ में। 550 वेरी सिंपल कंपैरिजन, यू हैव टू वर्क, बट कहाँ पे 5 साल या 50 साल, better is 5 years. Give your best in this 5 years, you will get best for the balance 50 years. So that's the main line, punch line of the today's seminar. 550 रूल को फॉलो करो, आपका 5 साल अगर आपने संभाल लिया, दुनिया अच्छी लगेगी, लाइफ अच्छा लगेगा, और ऐसे बहुत सारे रवि सर, बीके सर, हर्षा या मेरे जैसे आप उभर के आएंगे एंड काफी लोगों का और भला करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, लव यू ऑल। Thank you. And one more announcement from my side, and हर्षा, दोनों स्पीकर्स जो है हमारे इतने वो है कि इनके साथ आप सेपरेट एक कन्वर्सेशन रखिएगा, देन दिस विल बी द जस्टिस टू द स्टूडेंट्स। और कल टुमारो वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एट 7 PM, जिसमें हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, एक बहुत अच्छे सिंगर है, एक फ्लूट बजाते हैं, एक जो है उसमें सिंगर है, फ्लूट है, कॉमेडी है और पोएट्री है। तो ये कोविड में जो थोड़ा सा स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कम हो सके, उसके रिलेटेड वी हैव केप्ट दिस एंटरटेनिंग प्रोग्राम। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट हियर, आप ज्वाइन कीजिए, दिस इज वेरी 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 नाइस प्रोग्राम। या एंड थैंक यू वेरी मच टू हर्षा। हर्षा ने बहुत मेहनत की है इस सेशन के लिए, सो थैंक यू वेरी मच हर्षा ऑल्सो, एंड हैंड ओवर टू हर्षा। ये 1.5 घंटे का वेबिनार था, बट हर्षा इज वर्किंग सिंस आई थिंक 48 आवर्स फॉर दिस। सो थैंक्स फॉर योर वेरी गुड कोऑर्डिनेशन, एंड दोनों से, मेरे से और रवि सर से काफी इंटरेक्शन किया, एंड बिल्कुल हर्षा ने काफी मेहनत की, और बालकिशन जी भी। आई वंडर कि बालकिशन जी, आप अपने हेल्थ, अपनी फैमिली, अपना प्रोफेशन, उसके बाद आप इतना सोशली एक्टिव प्रोफेशन की इतनी सर्विस, हाउ यू मैनेज? आपके पास 24 आवर्स है कि 48 आवर्स? हम भी नहीं समझ पाते हैं सर। इसके लिए सेशन रखा जाए। हाँ, मैं तो डेफिनेटली इसके लिए सेशन रखना चाहिए अब तो। और सर मैं ये बता दूं, 24 आवर्स ही है, और उसके बाद भी आप देखेंगे कि हर्षा भी है या आशीष भी है या आप भी है, आई एम ऑलवेज फ्री। आप देखो मैं सारे सेशन अटेंड करता हूँ, आपके फोन्स भी आएंगे तो मैं इमीडिएटली रेस्पॉन्स भी करता हूँ। तो ये मैं इसमें ये मानता हूँ कि जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो मैं उठकर एक जो माइंड मेकअप हो जाता है, एक फिजिकली मेंटली आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, जितने भी काम आप उस दिन करने वाले हो वो आप एक बार फाइनल कर लेते हो, तो फिर वो जस्ट आपको रेप्लिकेट करने होते हैं। माइंड में एक बार सेट है चीजें तो बाहर ऑटोमेटिकली होती है। तो अल्टीमेटली वही है सब जो है कि माइंड मेकअप का है। सो दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल कि अगर थोड़ा हम जल्दी उठते हैं तो इट्स डिफरेंस very much in our life. So this is the guru mantra for my life. Yes, Aisha. Right. और बिल्कुल सही बताया बालकिशन जी ने कि इतना सब करके भी फ्री है, तो जैसे जब भी बालकिशन जी को फोन करना होता है अवेलेबल है। कल मैंने रवि सर से बात करी थी, तो एकदम खुले आसमान में नेचर के नीचे स्पेशली वो देखने के लिए वीडियो कॉल किया था कि क्या ग्रीनरी में वो घूम रहे थे। सिमिलरली जब मैंने आशीष जी को पूछा कि आप कब फ्री होंगे, तो एट योर कन्वीनियंट मैम, तो ये सब देख के लगा है यार इतना सब करके सब कुछ अवेलेबल है, तो बहुत अच्छी चीज है। और बिल्कुल आई सपोज इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे स्टूडेंट्स, व्यूअर सब से सीखेंगे, सबको सिखाएंगे और मिलजुल के आगे कंक्लूड करेंगे हमारा एक न्यू वर्ड स्किल विल। सो मेक इट एन एसेट एंड ऑफ कोर्स नेवर अ लायबिलिटी। थैंक यू सो मच।